I'm Yes, wonderful. Yeah, so some people have joined today also, no? Okay, I think they will be joining. So good evening, everyone. So how was Very good evening. Very good evening. So how was today's practice? How many of you actually remembered each time you ate? Hmm? Or after eating you remembered, oh, मैंने तो thank you नहीं किया. Hmm? ऐसा हुआ कि हर बार आपको पहले से ही याद था? खाने के लिए याद था, पानी पीने के लिए याद करना पड़ा बाद में. Good. In fact, today, each time I remembered and I actually felt that, the food was tastier. Yeah, this is what I felt today. And I had my samosa also. I thought because since morning I was doing gratitude for the food. And कल ही मैंने कहा था ना, महीने में एक ही बार खाते हैं. And today only my brother got samosa. I was like, wow. So it was magic for me, or maybe I attracted it by talking about Gratitude दिया था समोसा को. gratitude. Samosa ko. Yes. Yes. Yeah. So how did you feel? Did you actually savor the food? Took some time to eat it, you know, check कि हाँ आज उसका फ्लेवर कैसा है, ऐसा कुछ लगा आपको, कुछ डिफरेंट लगा? Yes. Seriously, I felt that I generally have some fruits and salad for lunch. तो आज मैं जब फ्रूट्स आज बना खा रहे थे फ्रूट्स, तो मेरे को लग रहा था कि नहीं आज ज्यादा अच्छा है. मे बी बिकॉज आई वाज पेइंग मोर अटेंशन टू इट. जनरली कुछ काम करते करते कुछ मैसेज कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, कुछ सर्फिंग कर रहे हैं, ड्राइंग्स के बारे में इंस्पायर हो रहे हैं, देन आई वुड normally have my lunch. but Focusing on my meal also. And in the during the breakfast time also, जैसे हम आपको बोल रहे थे, that was the time I was about to have my green tea. So I thought yes, normally करते हैं, but आज हम उसको थोड़ा और ध्यान दे रहे थे because of the chapter. And I got some gift of money also. So I was very happy. I thought सिर्फ हम आज food के लिए gratitude कर रहे हैं, and I got some money as a gift. So I was very happy. Of course मैंने सबके लिए thank you. पहले हम मना कर रहे थे कि नहीं चाहिए मेरे को. Then I thought no, magic is bringing money in my life. Why should I be refusing? So I accepted it, and I said thank you. yesterday we did this chapter. So today it was very easy for me to convince Chetra to not use phone while lunch. Otherwise it is really difficult. He's on his phone answering mails or talking to somebody or something. So I just today when serving it, I just had to just give him a look like this ki like Chetra phone. So he like immediately no behes, nothing at all, just by a look he just kept the phone. So what I couldn't do for so many years, just like one session yesterday, at least today it is, and I hope it will continue again. Yes, it is continuing. Okay. Yes, it will continue. Yeah. It will. Yes, wonderful. Yeah, so that is how it has to be. Okay, what we are speaking is what will happen. Okay, wonderful. So anyone else who tried to implement this? Not to read the papers, not to read the news while having your food? Okay, so now with both of us are doing that magic rock practice. So I was doing it till now. Chetra never noticed also for so many like 2-3 months that I'm doing so, but now he's also doing so. Now Adhiraj has also started doing it. So 3 of us sleep with this rock every day, and Adhiraj is like, Adhiraj prays every day that please send my friends for playing. And actually there is a friend of his in the building who used to be always at our place throughout the day, or he used to be at Adhiraj used to be at his place. But due to this corona and everything, they were not coming. And since Adhiraj has started taking that stone in his hand and praying, 2 days consecutively that kid is coming and playing at our place. Right now also they are playing. Wow. So it's really very nice. Yeah, wonderful. That's wonderful. And it is so nice of you guys that when Adhiraj is looking at you doing these practices and being grateful for stuff around, he will pick it up like so fast. He'll pick it up fast. Maybe he'll start practicing and later on he'll know the meaning faster. Yes. Understand things faster. Yeah. So we really feel we feel so happy when he's like in his innocent hand, he's taking that rock and praying to God, like please send my friends and all. It's very nice. Very cute already. Such a sweetheart with them. Yeah. 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 Excellent. So thank you for making Adhiraj aware of this, and definitely you are encouraging him and he's following it. So it's actually your
good thing that you are, because of you, the kids are also practicing this. Wonderful. Thank you. Thank you. I hope Magical generation. magical generation. Yes, I was about to say that. I hope I'm still doing the practices when he grows up, maybe 10, 12 ka hoga, then I'll probe him and okay, please send Adhiraj for my sessions. He'll do wonderful teaching and he'll do his sharings. Huh? Yes, sure. Yes. You will be doing it and Adhiraj will be joining it for sure. How old is he now? He's 4. He just turned 4 on 1st June. Okay, 1st June. Okay. Yeah. Cool. I'd send those cowboy pics now of his. He was praying that I want the dress and everything. Yes, and it was it just yes. Cowboy Yeah. thing. Yeah. Now I remember. Yeah. Sorry, my memory is like brilliant. No. You have to remember so many things. Nothing like that. It's okay. I can't remember But that. Adhiraj is unforgettable. Yeah, Thank he's you. unforgettable. Thank you. Yes. Thank He's you. unforgettable. Thank you. काय काढून देऊ? Okay, excellent. So let's start with the warm up and then we'll start the reading. Okay. So anyone wants to share how was the practice while you were eating? Did you actually make an effort not to do anything else but to focus on the food? And are you actually doing thank you water for healing my cells? See, this is something that I practiced and I have actually found amazing results. हमने आपको शुरू में ही बताया था. I'll say now, मेरा कुछ ना ऐसा लग रहा था कि बीपी थोड़ा ऐसे हो रहा था चैलेंजिंग. I'm like perfectly fine, but वो जब हो रहा था ना, तो that time only this magic book came. So I started having water and I would say thank you water for making my BP normal at 117/77. मैं थोड़ा ज्यादा वो नॉर्मल करके उसको बोल रहे थे हम 117/77 एंड आई एम परफेक्टली फाइन. एकदम हम फिट है मेरा. एंड और भी हम बिकॉज हमने ये मैजिक बुक कर ली थी, तो आई वुड से थैंक यू वाटर फॉर मेकिंग मी एंजॉय माय कॉफी. पीपल वुड से ना कि कॉफी नहीं पीनी चाहिए इन दिस इशू, इस ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में. सो आई वाज सेइंग दैट व्हेन आई वाज हैविंग वाटर आई वुड विजुअलाइज माय सेल्फ डूइंग शीर्षासन, जो भी सब लोग बोलते हैं कि ठीक नहीं होना चाहिए. So I would visualize that. I would tell my water to heal my cells. Each time something happens in my body, I just tell my water and I actually say thank you water, like उसको देख के पहले बोलते हैं, then I take a sip and while having the water it's almost like a meditation, जैसे कि आप पानी को बोल रहे हो पी रहे हो. Before this magic I used to automatic आ जाता था कि कुछ दवाई खा रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोलते थे या ऐसे कुछ बोलते थे. तो अगर आप इस टाइप का भी कुछ करते हो, that is equally, that is even better. आपको पता है नमः शिवाय इज एक्चुअली उसका फुल फॉर्म क्या है? नमः शिवाय. आपको पता है? That is again 5 elements of nature. Na is, you have written it out. I keep forgetting, so I have written it out. Na is earth, like bhumi. Ma is water, okay. Shi is fire. Va is air, and ya is space. तो आप जब ओम नमः शिवाय बोलते हो तो यू आर एक्चुअली सेइंग ओम. ओम इज लाइक द यूनिवर्सल साउंड. हमको पता है ये जो बिग बैंग थ्योरी बोला जाए या जो भी बोला जाए, जब सबसे पहले जो आवाज हुई थी दैट वाज ओम. आपने वो पिक्चर में देखा होगा ना, क्या नाम उसका, कृष्ण, कोई मिल गया. उसमें जो आओ जो था वो कोई जोक नहीं था जो उन्होंने बोल दिया. दैट वाज एक्चुअली दैट. सो व्हेन यू आर सेइंग ऑल दिस एंड talking to the yeah, so when we are talking about talking to the water, when we are talking about talking to the water, what are we doing? It is actually the sound which is changing the structure or changing the energy of that water or the food that we are eating. Okay, so ये sound बहुत important है. तो अगर आप जोर से थैंक यू बोलते हो या कुछ भी करते हो वो तो बेस्ट है. अदरवाइज आप अगर आप मन में भी बोल रहे हो वो भी बहुत अच्छा है. ठीक है. सो दैट इज व्हाई थैंक यू टू द फूड इज सुपर्ब. ओके. एंड 5 एलिमेंट्स आर अमेजिंग. जो आज हमने ये जो मैजिक इंग्रेडिएंट की प्रैक्टिस की है, इसमें आप वाटर को कर रहे हो एंड व्हेन यू आर डूइंग टू द फूड यू आर इनडायरेक्टली सेइंग थैंक यू टू द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर. ओके. सो कीप दिस इन माइंड. एंड 5 एलिमेंट्स इतने पावरफुल है, इतने स्ट्रॉन्ग है, हम लोग को जो चाहिए वो मिलेगा, बट हम लोग को दिल से ग्रैटिट्यूड करना है. ओके. द हार्ट फेल्ट थैंक्स, या वो करना है हमको. ओके. सो अब आपको जो भी मैंने सी देयर n number of reasons that Rhonda Byrne explained to us in the book कि ये सोच के कर लो कि इतने लोगों ने एफर्ट करके आपके प्लेट में वो खाना आया. ठीक है. इतने मेहनत करके आपके पेरेंट्स ने या आपके हस्बैंड ने या जिसने भी अर्न करके लेके आया. अब आप बोलो नहीं मैं तो खुद अर्न करती हूँ, लेकिन आज जो आप इतने बड़े हुए या 10 years तक तो आप नहीं अर्न कर रहे थे, तब भी
किसी ना किसी ने अर्न करके एफर्ट करके अपना पसीना बहा के यस खाना लेके अरेंज करके आया. So just think about all those things and start feeling grateful. Okay, so let's start with the warm up and then we'll start with the reading because today's chapter is amazing. हमको सबको चाहिए. I know I'm बहुत बार ऐसा हर सेशन में हम बोलते हैं बट क्या करें वो लाइन ही ऐसी. अपना सपना. What is अपना सपना? money. Yes, so today's chapter is all about money because बिना पैसों के हमारी ड्रीम्स की जो इतनी लंबी लिस्ट है ना, यहाँ घूमने जाना है, ये खरीदना है, इसके लिए एजुकेशन चाहिए, हाँ घर अच्छा चाहिए, वो सब कैसे आएगा विदाउट मनी. या सॉरी pray kara God love. Thank you. Priya, I God. want to share something. yes please. Yes. Okay, so every day we, like all three of us, practice with the magic rock, right? So my neighbor, she has a small daughter. She's 5 years old. Okay. So she came one day and she just saw that rock, and she's like, "What is this?" So Tanvi just told her that this is a magic rock. So she went running to her house and she told her mother that she has a magic rock. I also want one. Mother came running. What is this magic rock? What is she talking about? And then I told her roughly that this is what we do. So whatever we like, we keep thanking for whatever we have. And so she was listening to this conversation. So Okay. she's coming close to me and telling in my ears, if I say thank you, I will get what I want. So I said, yeah. So past 2 days, she's been saying thank you, thank you. Today she comes knocking at my door. I said thank you, but I didn't get any magic. So what did you tell her? So I said, but what did you want? So she said, I wanted a carom board. Okay. So then I said, okay, you keep saying thank you, you will get it. But this magic rock is not like your rock. You get what you want, but I am not getting. And she went on and on and on. Of course, she got it. She got her carom board today. Wow. But still, awesome. she was like so much engrossed in this whole conversation. She's like, मैं तो रोज thank you बोल रही हूँ आंटी पर मुझे फिर भी नहीं मिल रहा है. She came up like that. So what So you it's like, yeah, that you have been practicing for some time, do it regularly and you'll get. yeah, I told her that. I said, you keep on saying thank you for whatever you want, but you have to keep this rock nicely and you have to tell this rock thank you. I told her all that, but I just wanted to share that she got so, fascinated by it and she wanted to get into it. So every day she keeps asking us, all three of us, that, what is it that you have told today or what is your magic rock given you today? She's really fascinated with it. Wow, excellent. See, you guys are inspiring others. Okay, so it's so nice. If she gets into this habit of, being grateful, saying thank you, it's amazing. Everything. She comes and tells us also, आज मैंने thank you बोला 4 times बोला, सुबह भी बोला, she comes and tells us like this. Wow, so sweet. I told her that you don't have to be only grateful for what you want. आपको वो भी बोलना है, आपको पंखा हवा देता है, आपने पंखा को भी thank you बोला. So I told her like that, and then she's like, अच्छा फिर मैं अभी सब चीज को thank you बोलूंगी. Thank you Tanvi दीदी, thank you ये, thank you वो. So she went on like that, and then when she got it, she's like, ये तो सच्ची में काम कर गया. And then once I was not able to find my magic rock, so she's like, मुझे पता है आप कैसे ढूंढोगे. अवनी दीदी का magic rock लो, उसको thank you बोलो कि आपका magic rock मिल गया और मिल जाएगा. And then I got it. So she was so happy कि मेरे वजह से you found it. Okay, wow, so sweet, so sweet. So innocent. Yeah, so yes, wonderful. And you guys are doing amazing, huh? You are teaching her, you are, guiding her in the right path. Awesome. More and more magic to you guys also. Okay. Thank you. Thank you. And for food also, I was going on saying thank you today for food and for water and everything. And I wanted to have some Bengali mithai, okay? So I got it today. Excellent. Nice. May I read today? Yes, Tarini, thank you. Thank you for eating. Yeah. So let's start with the, thank you, Shipra, for the sharing and the wonderful way you are inspiring the little ones around you. Okay. In fact, you are inspiring so many people, your friends, their kids. Amazing. And Thank you. And you are bringing magic in so many lives. So thank you for that. Yeah. Thank you so much. Thank you, everyone. Every day I'm learning something new from everyone. Thank you. Yes, excellent. So let's start with the warm up. I think some people are yet to come, but let's start with the warm up. It's already 9:08. Sorry.
हाँ, yes, warm up time. Camera, lights तो हैं ही मेरे पीछे जल रही हैं, ठीक है? And action. Audio. 10 little fingers. Two little toes, two little ears, and one nose. 10 little fingers, 10 little toes, two Two little little ears, ears and one little nose. nose. Oh, wonderful. Excellent. So Tarni is reading and I will just share the screen. Yes, today is day 9 of this amazing, wonderful book, The Magic by Rhonda Byrne. And the chapter's name, Tarni, yes, please start. Day 9, the money magnet. Yeah. So why is it called the money magnet? Because we want to be magnet, yeah. Like we want to be the magnet and the money is just getting stuck to us. Magnet का क्या property होता है? यही होता है ना, वो जो उसकी जिस चीजों को वो attract करता है. क्या मम्मा चूरी डाल दिया था डब्बा में? Sorry, I'll just mute all everyone. Tarini, you please unmute and read, okay? So when we are looking at the picture, we are seeing that all these dollars, yeah, are flying towards me. मैं तो यही सोचूंगी कि उड़ के मेरे पास आ रहे हैं, मेरे से उड़ के नहीं जा रहे हैं कहीं पे. Because if I am the magnet, they are all just flying towards me and they will get stuck to me. Yeah, and we also see this magic sparkle. This magic dust is bringing all the money to me. And how is it possible that, you know, and of course there's the sky, there is sunlight, and you can see this थोड़ा सा ऐसे cloud जैसा lining भी ऐसे कुछ कुछ लग रहा है, and all over the dollars are just flocking to me. Yeah, so let's see how do we do this in our lives as well. And of course ये तो हमको सबको पता ही है कि कैसे होगा ये? Gratitude से. Yes, exactly. Gratitude से होगा. Yeah. So let's start. Tarini? Yes. Yeah. It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 1906 to 1945, Lutheran pastor. Yeah. So now when we are looking at this quote, it is saying that it is only with gratitude that life becomes rich. वो नहीं कह रहे हैं कि आप रिच हो जाओगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे, आपकी लॉकर में पैसे भर जाएंगे, आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा. वो ये नहीं कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि हमारी लाइफ रिच हो जाएगी. तो अगर हम लोग मनी के बारे में बात करें तो व्हाट इज मनी? आप क्या समझते हो मनी के बारे में? It's an energy transmission. Yeah, it's an energy transition. इसके पहले आपको कभी लगा था कि हाँ मनी इज एनर्जी ट्रांजिशन? नहीं, somebody had told me this in their life that money is the easiest way to clear karma, because you work very hard to get it, and then you give it away for your needs, but you give it to someone who needs it instead. So it's an energy transfer where you put in a lot of money, time and energy, and it gives you something instantly. So it's like a very clean flow of energy. Wow, very nice. This is like a wonderful, definition of money, I should say, and really nice, really nice. Yes, money is the key to all the pleasures of life. Yeah, you can say like that also. But सब लोगों ने नहीं, अगर किसी के पास already बहुत, यानी ये भी बात है, already पैसे हैं तो भी वो आपको pleasure देगा. So it is actually a means to get what you want. Yeah, अगर आपको health में कुछ breakdown है तो भी आप पैसे देके मेडिसिन लेते हो, डॉक्टर के पास जाते हो. आपके रिलेशनशिप में तो गिफ्ट देके में भी, आई डोंट नो, आपको अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अपने ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, हॉलीडेज, आपको अगर लोगों की हेल्प भी करनी है, ठीक है, तो भी आप लोग ये सुनते हैं ना, तन मन धन से आपको करना है. बट मैक्सिमम लोगों को, हम बोले जा रहे थे तन, मैक्सिमम लोगों को धन ही चाहिए होता है फॉर हेल्प, राइट? तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉट जस्ट टू फुलफिल आवर नीड्स, बट दूसरों की हेल्प करने के लिए भी मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब तक आपके पास नहीं होएगा, आप दूसरों को कैसे दोगे? या अगर आपके पास खाने के लिए होगा तभी आप दूसरों को भी दे पाओगे, देन ओनली यू कैन पार्ट with a little bit of whatever you have to help someone else. So money is very important, and gratitude is making our life rich, not just in the area of money, be it relationships, be it health. जब आपकी health अच्छी होगी तभी आप सब कुछ enjoy कर पाओगे. जब आपके relationships अच्छे होंगे तभी आप वो पैसे अच्छे से enjoy कर पाओगे, या जो holidays होंगी या जो gifts होंगे आप तभी enjoy कर पाओगे, right? So gratitude is the key which will open all these locks in any of the areas. Okay, so let's see how we become the money magnet by doing gratitude. Yeah, gratitude is riches.
and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. तो ये तो हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा, हमने हेल्थ में पढ़ा, हमने रिलेशनशिप्स में पढ़ा और मनी के एरिया में भी पढ़ा, ठीक है, कि ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, माने आप जिस एरिया में भी ग्रेटफुल हो रहे हो वो एरिया अच्छे से अच्छा होता चला जाता है, और जहां पे आप कंप्लेन कर रहे हो वो एरिया उतने स्टेप पीछे चला जाता है। कितने कंप्लेन करने से कितना पीछे जाएगा? 1 कंप्लेन 10 स्टेप्स, ये आपको याद रखना है। जैसे हम लोग बाकी चीजें लिख के रखते हैं ना, इफ यू वांट जस्ट राइट इट समवेयर 1:10, कि आपने एक कंप्लेंट की तो आप 10 स्टेप पीछे चले जाते हो। जब तक आप उस एक कंप्लेंट को 10 अप्रिसिएशन ग्रैटिट्यूड से बैलेंस नहीं कर देते हो, आप उतने स्टेप पीछे चले जाते हो। जैसे स्नेक एंड लैडर में, या मे बी आप दौड़ के जा रहे हो एंड किसी ने पैर लगा दिया और आप गिर गए और बाकी लोग रेस में आगे निकल गए, तो भी आप पीछे रह गए। तो दैट कंप्लेनिंग इज दैट, जिसने वो टंगड़ी लगाई, राइट, बट इस केस में हमने ही वो ऐसे बोला कि हम ही पीछे 10 स्टेप्स चले गए। Okay, so gratitude is the only thing which will take you aage and aage in all the areas of life. And now if you see, the more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much. आप बोलोगे जब मेरे पास इतना ही है तो हम कैसे ग्रैटिट्यूड करें? तो रॉन्डा बन कह रही है आपके पास जितना है, आपकी हेल्थ के एरिया में भी, चाहे आपके रिलेशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मनी, व्हाटएवर वी आर रीडिंग इज एप्लीकेबल इन ऑल द एरियाज, ओके, नॉट जस्ट मनी। तो हमको हर एरिया में ग्रैटिट्यूड करना है। आज क्योंकि मनी का चैप्टर है, सो वी आर फोकसिंग ओनली अबाउट मनी, बट एक्चुअली इट इज इन ऑल एरियाज, ठीक है। आप झूठ बोलते हो, नहीं, झूठ वाले में नहीं जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे व्हाइट लाई, ब्लैक लाई, किसी को बचाने के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो वी विल स्टिक टू दिस ओनली। सो इफ यू हैव व्हाटएवर लिटिल यू हैव, इफ वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट, मोर एंड मोर अबंडेंस विल कम टू अस, इवन इन द एरिया ऑफ मनी। एंड जितना हम लोग कंप्लेन करेंगे उतने पैसे कम होते जाएंगे और हम लोग और पुअर हो जाएंगे। कैसे? अगर आपने अपने इस घर के बारे में बोला कि नहीं मेरे तो पर्सनल रूम नहीं है, मेरी तो वार्डरोब इतनी छोटी है, हाँ, इसमें नीचे खेलने की जगह नहीं है कंपाउंड में, हाँ, अगर आपने बोला नहीं इसमें तो गार्डन भी नहीं है, इसमें नीचे अलग से बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, अगर आप ऐसे कंप्लेंट्स कर रहे हो एंड यू आर राइटिंग इन योर ड्रीम दैट यू वांट अ बिगर हाउस विद अ नाइस कॉम्प्लेक्स, एंड इन अ नाइस कॉम्प्लेक्स विद अ बिग गार्डन, kids section, proper car parking, एक gym भी हो, and you are complaining about your current society or your housing complex, वो एरिया, वो आपकी ड्रीम कभी पूरी नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी बिकॉज यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योर करंट थिंग। हाँ, तो अगर हम लोग इसके बारे में सोचें कि हमने जो पहले जो मनी की प्रैक्टिस की थी उसमें क्या था, एक प्रैक्टिस की थी ना हम लोगों ने मनी वाली, इट वाज नोट पे वी हैड पुट magic money, yes, but actual में वो क्या practice थी? Whenever you are looking at that money, the note, what are you thanking for? You are thanking for all the money that was spent on you while you were small, when you were not earning. So it was all the money in the past. Yeah. अब अगर हम लोग जो टेंस की बात करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हम लोग को फ्यूचर में पैसे चाहिए हैं, पास्ट का हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड कर लिया है, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है अगर हम लोग उससे खुश नहीं है, ठीक है, तो अगर हम लोग आज के सिचुएशन में खुश नहीं है, आज की कंप्लेंट्स कर रहे हैं, तो हमारे फ्यूचर में कभी पैसे बढ़ेंगे? कभी नहीं बढ़ेंगे। आप सोचो, अगर हम एक ट्री को सोचें तो जो रूट्स हैं, हाँ, वो जो जमीन के अंदर चली गई वो पास्ट है। आप अभी उसमें जो पानी डाल रहे हो, इन द सेंस लाइक इफ यू टॉकिंग अबाउट अ सैपलिंग, अभी जो उसमें पानी डाल रहे हो दैट इज योर प्रेजेंट, ठीक है। आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, और फिर जो उसमें से पत्ती निकलेंगी, कि फूल निकलेंगे, कि फ्रूट्स निकलेंगे, वो आपको फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। अभी अगर आप उसमें पानी नहीं डालोगे तो क्या वो पेड़ कभी बढ़ेगा, चाहे जितनी भी अच्छी उसकी रूट्स हो गई हो? टेल मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एन एवरग्रीन ट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉर्मल सैपलिंग जो अभी हमने सो की है, अभी हम लोग देख रहे हैं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर द पास्ट मनी दैट वी हैव रिसीव्ड। सो प्रेजेंट में अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे, हाँ, तो हमारे फ्यूचर में वो सैपलिंग के अंदर से फ्रूट, फ्लावर्स, जो भी हमको चाहिए हमारे ड्रीम में, वो मिलना और चैलेंजिंग हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू नरिश द सैपलिंग, वी हैव टू नरिश द सैपलिंग विद ग्रैटिट्यूड, ओके। जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज्यादा पानी हम नहीं डालने वाले उस पेड़ में, बट जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड, फर्टिलाइजर, आप जो भी बोलो, जितनी ज्यादा आप उसकी केयर करोगे उतना अच्छे से वो पेड़ बड़ा होगा। So today's practice, today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude.
and so it has double the power to change the circumstances of your money. You'll be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. या तो आज की जो प्रैक्टिस है वो हमको, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वो प्रेजेंट के बारे में है. जो सिचुएशन में आप, किस सिचुएशन में आप नॉर्मली कंप्लेन करते हो अबाउट मनी इन द प्रेजेंट सिनेरियो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, जब आप तुरंत अपने हाथ से पैसे दे रहे हो या आपने कुछ बिल पे किया, ठीक है, आपने किसी की सैलरी दी, तो आप कंप्लेंट, मतलब अगर आपने थॉट में भी सोचा है, ठीक है, आपके थॉट में भी आया है कि ओहो अभी तो लॉकडाउन है फिर भी मेरे को पूरी सैलरी देनी पड़ रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक का बिल तो इतना लंबा है, हाँ अभी तो लॉकडाउन है, कैसे होगा. अगर हम सोच उस समय, हम प्रेजेंट के जो बिल्स हैं जब हमको वो देना पड़ता है, ठीक है, उस समय सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं. डीजल का प्राइस कितना बढ़ गया है, ठीक है, ओहो कार को भी सर्विस में देना पड़ेगा, उसके भी पैसे लगेंगे, या एवरीथिंग, बच्चों की फीस, स्कूल तो जा ही नहीं रहे फिर भी फीस ले रहे हैं, यू नो, ये सारे सिचुएशन जो प्रेजेंट में जो भी आपको पे करना पड़ता है, उसके लिए अगर कंप्लेन करने के बजाय हम ग्रैटिट्यूड करने लगे, व्हाट रोंडा बन इज टेलिंग अस, वी आर रिप्लेसिंग अ कंप्लेंट विद ग्रैटिट्यूड. तो क्या होगा, अब आप जब फीस दे रहे हो, इलेक्ट्रिक बिल दे रहे हो या सैलरी दे रहे हो किसी की, इंस्टेड ऑफ यू नो इन अ कंप्लेनिंग जोन, आप उसको ब्लेस करके, हम लोगों ने पढ़ा ना कि जब पैसे हाथ से जाएं तो आपको ब्लेस करके देना है, या तो अब आप कंप्लेनिंग थॉट के बजाय अगर आप उसको ब्लेस करके दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, अगर आप 1 कंप्लेन करते, तो सपोज आपके पास 100 रुपीज है, आपने 1 कंप्लेन किया, तो क्या हो गया, आपके पास 90 रह जाएंगे, ठीक है. इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग, इफ यू डू ग्रैटिट्यूड, तो क्या होगा, आपके पैसे और बढ़ेंगे, जो वो 90 होने वाले थे अब वो 90 नहीं होंगे, इनफैक्ट और आगे बढ़ जाएंगे और ज्यादा आ जाएंगे हमारे लाइफ में. एंड दिस इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस, वंडरफुल प्रैक्टिस. आई एम टेलिंग यू, आज ही मेरे को लाइक ऐसा, तुम बहुत मेरे संग तो ये बहुत ही अच्छा हो रहा है, आई एम थिंकिंग ऑफ द प्रैक्टिस, और उसी दिन मेरे को उसी प्रैक्टिस में फायदा हो जाता है, ठीक है, पहले से ही मैजिक हो जाता है. सो लाइक टुडे ओनली माय सिस्टर इज हियर, शी गेव मी गिफ्ट, she had come after 3 years, तो उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया, she gave me money, I was like so happy, and I was also, दीदी don't give, then I thought oh god I am refusing money, I can't do that, so I accepted it happily. Okay, तो आप ये भी देखो, चाहे जो भी आपको अमाउंट मिलता है, happily take it. हम लोग पहले क्या करते थे, वो खाली 100 रुपए दिए, छोटे में कभी ऐसे आपको किसी ने दिए, इतने सब गया और खाली 100 रुपीज मिले शगन के, यू नो, जब भी आप ऐसे बोलते हो यार, वी वर लाइक दिस, एनवलप खोल के सबसे पहले देखना होता था कि कितना मिला. समटाइम्स वी वर हैप्पी, कम होते थे तो वी वुड थे कि अच्छा इतना ही मिला खाली, हाँ इतना सब कुछ किया और हम लोग को ये मिला, ऐसा आता था थॉट. हाँ, तो अब हम लोग को ये सारे थॉट्स निकालने, जो आ रहा है, ठीक है, दैट इज मैजिक इन योर लाइफ. वो इसीलिए आ रहा है, उसी अमाउंट में आ रहा है कि आपने कितना ग्रैटिट्यूड किया हुआ है उसके लिए. सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, व्हेनेवर मनी इज गोइंग फ्रॉम योर हैंड, आपको चेक करना है कि ये प्रेजेंट का मनी है, आपको उसको ग्रैटिट्यूड करके ही देना है, ठीक है. सो लेट्स रीड. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they're complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid up. या तो अब आप देखिए, ये जो हम लोग के बिना कॉन्शियस, अनकॉन्शियसली जो हम लोग कंप्लेन करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है, उस पे हमको ध्यान देना है, ठीक है. कब आपने बच्चे को कुछ बोल दिया, ठीक है, कि नहीं इतनी महंगा है अभी नहीं करेंगे, पिछले हफ्ते ही तो बाहर का पिज्जा खाया था, अब हम लोग 15 दिन बाद खाएंगे, ऐसे ही लॉकडाउन है. जैसे जैसे आप बोलोगे नहीं मैं तो बच्चे को समझा रहा था कि रोज रोज पिज्जा खाने से तो सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए, बट आपने क्या रीजन दिया, आपने ये रीजन दिया कि अभी तो हमने लास्ट वीक कॉस्टली पिज्जा खाया था, इसलिए हम लोग अभी नहीं खाएंगे. तो इफ यू आर कंप्लेनिंग लाइक दिस विद योर थॉट्स, वर्ड्स, आप जिस भी तरीके से कंप्लेन कर रहे हैं वो हमारे लाइफ में पैसे कम कर रहा है, ठीक है. पैसे कम मतलब जितना ज्यादा आप कंप्लेन करते जाओगे पैसे कम हो रहे हैं, तो इट इज लिटरली क्रिएटिंग पॉवर्टी जस्ट विद आवर थॉट्स एंड आवर वर्ड्स. या please read Tarani. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there's a greater stream of bills than there is money to pay. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. या सो अब जब हम बिल आता है, आप बोले नहीं बिल तो पे करने हैं, हाँ पैसे कम है क्या करें,
तो भी हमको अपने आप को कंट्रोल करके कंप्लेन नहीं करना है। आपने वो सीक्रेट मूवी देखी थी ना, कि एवरीवन हैज सीन इट राइट? Yes. जब उसके बिल आना स्टार्ट होता है एंड वो गुस्सा करता है, ओ गॉड अनदर बिल, तो उसके पास बिल आते ही चले जाते हैं, राइट? जब उसने ये सोचा कि नहीं, अब इस बिल के बजाय हम इसको सोचेंगे मेरे पास चेक आ रहा है, तब उसके पास कहीं ना कहीं से चेक आते चले जा रहे थे, ठीक है? तो वो दो चीजें करा था, एक तो वो विजुअलाइजेशन करा था, सेकेंडली पहले वाले उसमें केस में कि जब वो सोच रहा था बिल आ रहे हैं एंड ही वाज गिविंग इट नेगेटिव एनर्जी, ठीक है? वो नेगेटिव एनर्जी दे रहा था, बिल्स के बारे में सोच रहा था, तो उसके लाइफ में यूनिवर्स बिल्स बिल्स भेज रहा था। जब उसने सोचा कि नहीं ये बिल्स नहीं है, तो मेरे पास इतने पैसे आ रहे हैं, इतने चेक आ रहे हैं, तब यूनिवर्स ने क्या किया, उसको वैसे वैसे चेक आने लगे। तो मनी के एरिया में फीलिंग्स बहुत जल्दी माने ट्रिकी टाइप्स की होती हैं, तुरंत आती तुरंत जाती हैं, और हम लोग को उसको चेक रखना पड़ता है, ठीक है? अपन कुछ भी अमाउंट देखते हैं तुरंत ऑलमोस्ट निकल, इतना महंगा नेट पे तो इतने का मिल रहा था, इस शॉप में इतना महंगा मिल रहा है, आता है कि नहीं आता? एवरी टाइम वी आर इन अ शॉप नाउ वी वांट टू गूगल एंड सी कि उसका नेट पे क्या प्राइस है। हो गया ऐसा कि नहीं? फिर जब नेट पे देख लेते हैं तो फिर 2-3 साइट्स देखने लगते हैं, क्या? तो बिल्कुल ये करिए, बट जस्ट चेक व्हाट इज योर थॉट। Are you complaining about the shop? Are you complaining about the price of that product in the shop? Just keep checking it. और जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ कंप्लेन करते रहते हैं। लाइक मेरे को तो कई बार पता चलता रहता है, इट्स अ कांस्टेंट लर्निंग, ठीक है? आप देखो कि आप कैसे करते हो, और जितना ज्यादा आप अवेयर होगे और कंट्रोल रखोगे अपने कंप्लेनिंग माने थॉट्स एंड वर्ड्स को, उतना ज्यादा हमारे लाइफ में और मनी आता जाएगा। क्या? If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods and goods or services you've received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. Yeah. So now Rhonda Byrne is telling us that if we start feeling grateful कि हमको ये सामान मिला है, हमको ये सर्विस मिली है, इसलिए हम इसका पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है? एंड हमारा भला हो रहा है। If we start thinking like that, ठीक है? One is this, आप सोचो ये सर्विसेज एंड गुड्स हमको मिले हैं और इससे मेरा अच्छा हुआ है, इसलिए हम इसके पैसे दे रहे हैं। You can think like this, और you can think that आपने उसको पैसे दिए तो उस पैसे से उस कंपनी का, उस पर्सन का अच्छा हो रहा है, that you have that power, that your money is going to enrich and make their life happy. So either of the thoughts which work for you, take that thought and stick to it. कभी ये मन कर रहा है तो ऐसा सोचिए, कभी ये लगे कि आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप वैसे सोचिए, बट जो भी सोचिए बी ग्रेटफुल फॉर द मनी। एंड जितना ज्यादा अपन पैसे देते के टाइम में अच्छी फीलिंग से देंगे, Rhonda Byrne is telling us that is the time when we become a money magnet, ठीक है? कि पैसे आपके हाथ से जा रहे हैं तब हमको खुशी खुशी हैप्पीली देना है। वी आर नॉट टू से कि नहीं इतने पैसे जा रहे हैं, इतना बड़ा बिल आया, पिछले बार इतना था अब तो और ज्यादा आ गया है, ठीक है? तो ऐसा एकदम हम लोग को नहीं करना है, ओके? या yes, Sarani, please unmute. Sorry. To be grateful for a bill, think about how much you've benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets, so be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. या तो अब रोंडा बर्न हमको एग्जाम्पल दे रही हैं कि हो सकता है हम लोग रेंट देते हो, ठीक है? रेंट नहीं देते हैं तो मे बी इंस्टॉलमेंट देते हैं। अगर अपन दोनों ही नहीं देते तो मे बी आप अपने बिल्डिंग में मेंटेनेंस का कुछ एक्सपेंस देते हैं, ठीक है? नहीं तो आप अपने जनरल, अगर आपका अपना बंगलो ही है उसमें भी आप कुछ एक्सपेंसेस करते होंगे, ठीक है? हो सकता है आपने उसके लिए जब अपना घर बनवाया हो तो किसी से लोन लिया हो, अगर नहीं भी लिया होगा तो इसके पहले अगर कहीं और रहते होंगे तो मे बी वहां पे रेंट देते होंगे। तो अगर हम जब ये वाला मंथली जो पेमेंट करते हैं उसको देते टाइम इफ यू फील बैड, सो शी इज टेलिंग अस टू थिंक ऑफ रीजंस टू स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल। एंड शी इज टेलिंग अस कि अगर आप रेंट पे रहते हो, ठीक है,
तब आप सोच रहे हैं लैंडलॉर्ड तो है ही बदमाश, देखो घर कैसा है, छोटा सा है, ये भी नहीं चलता वो भी नहीं चलता, इतना रेंट ले लेता है, ठीक है। बट अगर वो रेंट नहीं आप उसको देते, अगर वो लैंडलॉर्ड नहीं होता, हाँ, तो क्या आप उतना बड़ा घर बना पाते, ठीक है, जिसमें नीचे में भी बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है, स्विमिंग पूल है, जिम है, नहीं है तो नीचे सिक्योरिटी है, हाँ, उसने इतना एफर्ट करके लोन लेके, हो सकता है उसने वो घर लोन लेके बनाया हो, ठीक है, तो उसने सारे एक्सपेंसेस बेयर किए, वो सारी रिस्क ली, उसने ली सारी रिस्क, और उसने आपको वो छोटे से रेंट के लिए उसने आपको वो जगह दी, ठीक है। सो फॉर यू इट इज अ स्मॉल अमाउंट, बट उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत सारा था, राइट। तो आप वही सोच के कर लो कि मैं तो अपना घर नहीं बना पाता ऐसे, या नहीं बना पाती, तो उसको जो हम रेंट दे रहे हैं वो उसी के लिए है, आप वो सोच के ग्रैटिट्यूड करके करो। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे आपका घर है तो आप ये सोचिए कि एकदम से जो इतने सारे पैसे देने पड़ते हैं, तो पहले तो अगर आप बोले नहीं पैसे तो थे लेकिन क्या पता मोदी जी के कारण और टैक्स के कारण मैंने पूरे नहीं दिए, मुझे इंस्टॉलमेंट लेके करना पड़ा, तो अगर वो आपको बैंक या वो लेंडिंग इंस्टीट्यूट आपको वो पैसे नहीं देती तो भी आप एकदम से नहीं खरीद पाते, तो आप वही सोच के उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करके आप उसका पेमेंट करिए, ठीक है। तो जो भी पेमेंट आपको करना है यू हैव टू ब्लेस इट एंड गिव, ठीक है। ये नहीं सोचना चाहिए ओ हो अब तो फिर से ये लाखों का इंस्टॉलमेंट जाने वाला है या ये रेंट जाने वाला है, ऐसा एकदम नहीं सोचना है। जब वो पैसे जा रहे हैं यू हैव टू से थैंक गॉड दैट आई गॉट दिस लोन, थैंक गॉड दैट दिस लैंडलॉर्ड इज गिवन मी दिस प्लेस एंड हमको उसका रेंट देना है। जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस फॉर योर हाउस आर गोइंग, गिव ब्लेसिंग्स टू द मनी दैट इज गोइंग, ठीक है। Yeah, so please read. If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you're paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you've been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. तो आप ये सोचिए कि अगर हम लोग आप सोचिए ना, अगर हम लोग टेलीफोन बिल दे रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कितनी अमेजिंग बात है कि हम लोग आज यहाँ पे बैठ के दूसरी सिटीज से हम लोग यहाँ पे एक दूसरे को देख के, ठीक है, आराम से ये सेशन कर रहे हैं। सो अगर हम लोग यही सोचें कि वाओ अगर ऐसा नहीं होता, ये मेरी एयरटेल कंपनी या ये जियो कंपनी या जो भी आपकी कंपनी है उसने ये ऐसा नहीं सेटअप किया होता तो हम लोग ये सब कैसे करते। एंड व्हाट डू वी हैव टू पे, मे बी ये नॉमिनल, अब आजकल तो रेट्स भी कितने कम हो गए, जस्ट इमेजिन मे बी फॉर अ 400-500 रुपये अ मंथ we are using all these facilities. Not only this, you can watch your Netflix, you can do video calls anywhere in the world, you can go read any book for that matter, सब आपको नेट पे मिल जाता है, आपको गाने सुनने, कुछ गेम खेलना, anything and everything is possible by paying how much, only 500 rupees, right? और भी कम होता है आजकल तो, आई डोंट नो आपने कौन सी अच्छी स्कीम ली है, तो और भी कम हो सकता है, या मे बी 200-300 ओनली। तो वो आप सोचो, और उसका बिल भी, उसके पहले हम लोग को ये लगता ना वो गॉड कितना है, इतना तो जीबी मैंने यूज ही नहीं किया, इतने ये लोग बदमाश हैं, कंजूस हैं, इतने सारे रुपए बस बेबी इतने सही जीबी दे रहे हैं, पहले हम लोग ऐसा सोचते थे ना। तो वो सोचने के बजाय इफ यू थिंक कि यस, जस्ट इमेजिन उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया, कितने सारे टावर्स लगाए, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉय किया, हाँ, वही सोच के अगर हम लोग देने लगे, अब लोग नहीं 200-300 देने में नहीं लगता, इलेक्ट्रिक बिल देने में ज्यादा लगता है, राइट। तब आप सोचिए जो इलेक्ट्रिक बिल आप दे रहे हो पूरा महीना, आपने उसको, अभी तक तो हमारे कंट्री में आई थिंक प्रीपेड नहीं है ना, सारा इलेक्ट्रिक बिल अपन को बाद में ही पे करना पड़ता है, पूरे महीने हम लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं। क्या in apartments you get prepaid also, like okay cool, now you can charge and then uta electricity. My brother Sahil has it in his house. Okay cool, see this was new, that is I was wondering वो भी हो ही क्या होगा शुरू, that's why I thought prepaid होता है क्या, I thought खाली postpaid ही होता है। तो either ways अगर आप prepaid भी ले रहे हो, postpaid भी ले रहे हो, तो आप सोचो हम लोग आराम से सब चीज एंजॉय करते हैं, हाँ, अपना फोन चार्ज करना, राइट, आप जो भी टीवी देखना है, आपको एसी ऑन करना है, फैन ऑन करना है, हॉट वाटर चाहिए आपको, कैन वी इमेजिन अ लाइफ इन द किचन विदाउट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, आप सोचो, कैन वी इमेजिन कि आज मिक्सर नहीं हो, टोस्टर नहीं हो, राइट, जूसर और ओवन तो चलो नेक्स्ट में आता है, बट मिक्सर के बिना कैन यू इमेजिन योर लाइफ कि वो कोफ्ते की करी, हाँ, या वो मैंगो शेक, कैन यू थिंक कैसे बनेगा, हाँ, आजकल तो एनीथिंग, लाइफ विल बी सो चैलेंजिंग इफ वी डिड नॉट हैव द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या, और फोन ही चार्ज नहीं होगा,
तो जितनी भी सारी इंटरनेट की चीजें सब कुछ है वो कैसे होएगा, हाँ, ये जूम क्लासेस कैसे होंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट। तो उसका जब आप पे कर रहे हो तो आप यही सोचो कि आपने तो एकदम अच्छे से एंजॉय किया, सो लेट्स ब्लेस द मनी दैट इज गोइंग, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली एनी ऑफ द थिंग्स, आप सोचो ना, नेक्स्ट आता है जब हम लोग को सैलरी देनी होती है, तो भी यही, अगर आप उसको देते टाइम भी, सैलरी देते टाइम भी आप यही सोचो कि ये जो आप अमाउंट उसको दे रहे हो उससे उसका घर चल रहा है, यस। तो जस्ट वही सोच के यू फील दैट यू, गॉड हैज गिवन यू दिस चांस कि आपके पैसे से उसका घर चल रहा है। आपका अगर आप बिजनेस सेटअप है, आप वहां पे सबको सैलरी दे रहे हो, तो यू गॉट दैट चांस कि आपके पैसों से इतने सारे लोगों का घर चल रहा है, या तो जितने बार आप उस पैसे को दे रहे हो तो घर तो चल ही रहा है, जस्ट ब्लेस इट एंड गिव। सो दैट विल मेक यू अ मनी मैग्नेट, कि जो पैसे आपके हाथ से जा रहे हैं, यू हैव टू थिंक ऑफ रीजंस। हम लोग जो सुबह ब्लेसिंग्स लिखते हैं, जब ग्रैटिट्यूड करते हैं तो उसमें रीजन देते हैं ना, जब रीजन देते हैं तो और अच्छे से फीलिंग्स आती है। तो जब आप पैसे दे रहे हो, जस्ट थिंक, इफ नहीं आ रही हैं अगर फीलिंग्स, देन थिंक दैट हाउ दैट मनी इज गोइंग टू चेंज द पर्सन्स लाइफ। या रिमेंबर दैट वो दिवाली के टाइम पे जनरली पिज्जा वाले का, पिज्जा का नहीं, कोई एक ऐड आता था कि बच्चे लोग बोलते थे नहीं मुझे पिज्जा खाना है, तो इंस्टेड ऑफ द पिज्जा getting the pizza, with the pizza money the lady gets stuff for the staff and उसके फैमिली के लिए, वो ऐड आता था ना, आई रियली लव दैट ऐड। तो वही सोचो कि वो पैसे उस पर्सन के लिए कितने मैटर करते हैं। सो व्हेन यू आर गिविंग दैट मनी, आपको तो देना ही है, आई एम नॉट, बुक इज नॉट टेलिंग अस यू गिव एक्स्ट्रा मनी टू ऑल दीज पीपल, जो आप दे ही रहे हो जस्ट उसको और ग्रेटिट्यूड से देना है, ठीक है। सो डोंट यू थिंक इट इज इजी, यू डोंट हैव टू शेल आउट एनी एक्स्ट्रा परसेंटेज, जो आप दे रहे हो, जो आपको देना ही है, उसी को आपको और ब्लेस करके देना है, एंड दैट विल मेक अस द मनी मैग्नेट। या easy. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the words "Thank you, paid" on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, "Thank you for the money." Then, when I had the money to pay it, I would add, "Thank you, paid." या तो आज की प्रैक्टिस जो है वो भी बहुत इजी है, पर उसमें क्या करना है, हमको जो बिल्स हमने पे कर चुके हैं, ठीक है, उस पे हमको लिखना है थैंक यू पेड। रॉन्डा बर्न ने ऐसे किया था और हमारे को भी यही करना है। एंड जिनका हमको पेमेंट करना है, ठीक है, इट्स लाइक आपको फोन बिल का अगर करना है, इलेक्ट्रिक बिल का अगर करना है, इफ ऑल दोज आर योर पोस्ट पेड बिल्स, जिसका भी आपको पेमेंट करना है, ठीक है, उस बिल के ऊपर हमको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। जिसका पेमेंट हम कर चुके हैं उस पे लिखना है थैंक यू पेड, ठीक है। एंड ये वो कर रही हैं बहुत दिन से, लाइक दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग, जब से उनको पता चला है शी इज डूइंग दिस, एंड टुडेज प्रैक्टिस इज अबाउट दिस। एंड जब से ये प्रैक्टिस आई है, हम तो तब से करी ना, लाइक सिंस द टाइम आई हैव नोन अबाउट दिस प्रैक्टिस, मेरे जितने भी बिल्स होते हैं उस पे तो हम लिखते हैं, घर में भी कोई इधर उधर मेरे को बिल मिल जाते हैं ना, तो हम उस पे भी कर देते हैं। तो लेट्स रीड द फुल प्रैक्टिस प्रॉपर्ली, देन वी विल डिस्कस व्हाट ऑल डू वी हैव टू डू। या Today, you're going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, "Thank you for the money," and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." Yeah. Next, find 10 bills you've paid in the past and write across the front of each one the magic words, "Thank you, paid." As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you've paid, the more money you will magically magnetize to you. या तो हमको क्या करना है, जो हमारे बिल्स हैं जिनको हमको पे करना है, जिनको अभी तक हमने पे नहीं किया है, वो बिल्स इकट्ठे करके आपको उसके ऊपर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, ठीक है। अगर आप बोलो कि नहीं ऑनलाइन बिल्स आते हैं, तो रॉन्डा बर्न कह रही है आप अपने आप को वो फॉरवर्ड कर लीजिए बिल्स फिर से, और उसके सब्जेक्ट में लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी, दिस लाइन, या थैंक यू फॉर द मनी। और जो बिल्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उस पे लिखना है थैंक यू पेड, माने हमको 10 बिल वो ढूंढने हैं जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, उसके ऊपर लिखना है थैंक यू पेड। और जब हम लिख रहे हैं तो यू हैव टू से, लाइक यू हैव टू फील
very happy and grateful that आपके पास वो पैसे थे जो आप जिनके कारण आप ये बिल पे कर पाए, वो सामान आप खरीद पाए, ठीक है। सो वी हैव टू डू दीज 2 थिंग्स। जो बिल्स हमारे नहीं पे हैं उन पे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, और 10 बिल्स इकट्ठे करने हैं इन दिस पास्ट मंथ या मे बी अप टू 2 मंथ्स। ये नहीं कि आप 4 साल पहले के बिल्स निकाल के उसके ऊपर लिख रहे हो कि नहीं एक ज्वेलरी खरीदी थी ना उसका एक बिल पड़ा हुआ है लाओ उस पे भी लिख लेते, नहीं, जो अभी रिसेंट बिल्स हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है। और ये तो रिसेंट वाले तो लिखने ही है, बाद में आप शांतिपूर्वक और भी ज्यादा करना है तो आप कर लो, बट अभी रिसेंट बिल्स पे करना है। और you have to write thank you paid, and when you are writing it, feel grateful that yes you had that money, God gave you that money and you could pay for those items, ठीक है। एंड जितना ज्यादा फीलिंग्स आप कलेक्ट करके लिखोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा टू अट्रैक्ट दैट मनी। यस प्लीज रीड। एक ही शॉप के अगर बिल हो तो उसमें भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल, एकदम जितने भी बिल्स हो, एक शॉप के तो कितने सारे होते ही हैं, है ना, लाइक 2-3 बिल्स अब एकदम बिल्कुल लिखिए आराम से, नो प्रॉब्लम्स। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you've received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, thank you for the money. And feel as if you're saying thank you because you have the money to pay the bill. Yeah. तो हमको क्या करना है, कल तो ये प्रैक्टिस करनी है। रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दैट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, माने आप हर महीने तो बिल आते हैं, इलेक्ट्रिक बिल आएगा, फोन बिल आपको देना ही है, सैलरी देनी ही है ना, कुछ सामान आता है ग्रोसरी से, अमेज़न से आता है, जो भी सामान आता है, आप स्कूल की फीस पे कर रहे हो, ट्यूशन पे कर रहे हो, आपको हर बिल पे, आप बोलोगे नहीं ट्यूशन की तो कोई बिल आता नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी बिल्स आपके पास फिजिकली नहीं आते हैं, आप जो सैलरी देते हो अगर मेड को या दूध वाले को या जिसको भी जो भी आप पेमेंट करते हो उसके बिल नहीं आते हैं, तो आप क्या करिए उसका एक कच्चा बिल बना लीजिए, एक पेपर लेके डेट लिख दीजिए या मंथ लिख दीजिए, अमाउंट लिख दीजिए और उसके ऊपर फिर लिख दीजिए थैंक यू पेड। अगर आने वाला है जैसे मंथ एंड अभी तो है 7 डेज, तो आपको पता है कि आगे आपको देना ही है 30th को या 1st को, तो कल आप उनका ऑलरेडी कच्चा बिल बना दीजिए और आपने दिया नहीं है तो उस पर लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, जितना ज्यादा आप ये करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आपने लिख दिया थैंक यू फॉर द मनी, तो जब आपने पेमेंट कर दिया उसका, मे बी ऑन द 1st और द 2nd और द 30th, आपको उसी के ऊपर फिर से लिख देना है थैंक यू पेड, ठीक है। तो अगर आपको ये जो ऑनलाइन बिल्स की बात भी बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ईमेल फॉरवर्ड करो, ये करो वो करो, टू मच है, तो जस्ट एक पेपर पे आप वैसे ही उसी का भी कच्चा बिल बना लीजिए, ठीक है। अगर आपका कुछ ऑनलाइन डिडक्शन होता है, ऑनलाइन ही ऑटोमेटिक कुछ डिडक्शन जो होते हैं ना मंथली वाले, उसका भी आपको करना है, तो उसका भी ऐसे ही कच्चा बिल बना के राइट इट ऑन दैट, ठीक है। सो इज दिस प्रैक्टिस क्लियर? So when you are writing on it, you have to feel grateful for whatever you have got for that bill, ठीक है, whether it's the service, whether it's the some product that you have got, you have to feel blessed कि yes ये मेरे को मौका मिला कि भगवान जी ने हमको ये पैसे दिए हुए हैं, that I could pay for it, ठीक है। तो जो भी रीजन आपको देखना, आपको सर्विस सोचना है, आप सर्विस सोच लीजिए। अगर आपको ये सोचना है कि आप जो पैसे दे रहे हैं उससे सामने वाले की सैलरी हो रही है, ठीक है, या उसके घर में पैसे जा रहे हैं, आप वो सोच के भी दे सकते हो। जिस थॉट से आपके मन में ज्यादा ग्रेटिट्यूड आए, यूज दैट थॉट एंड राइट इट ऑन इट, ठीक है। Feeling gratitude for the money you've paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill of $50 that you could receive back hundreds of dollars. Yeah, so just see such a cute line, huh? Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. हाँ, माने जैसे नहीं हम लोगों ने वो खेला है, वो योयो टाइप का, वो जो आजकल वो जैसा आता ना, आपने उंगली में उसको फंसा लिया, ऐसे किया एंड इट कम्स बैक टू यू। या सो नाउ शी इज टेलिंग अस ग्रेटिट्यूड इज लाइक दैट मैग्नेटिक गोल्डन थ्रेड, हाँ, कि आपके पैसे में लगा हुआ है, आपने पैसे दिए, वो उसके ऊपर और पैसे चिपका के आपके वापस ले आ रहा है लाइफ में। सो डोंट यू थिंक इट्स सो क्यूट, हाँ, कि वो जो पैसे गया है वो उतने पैसे बटोर के लाएगा जितना आप उसको फोर्स से भेज रहे हो,
कौन सा फोर्स है वो ग्रैटिट्यूड का फोर्स है। तो जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड के संग आप वो मनी पे करोगे, आपका ही मनी है, आप ग्रैटिट्यूड से, जैसे श्वेता आई थिंक वाज शेयरिंग दैट डे ना कि यू शी टेल्स द मनी कि और पैसे लेके आना, कम बैक टू मी सून। Shweta, are you there? This is what you were talking about now. So Rhonda Byrne is telling us that only, that if we are using more and more gratitude, it will come back many times more. Yeah, so sometimes 10-fold, sometimes 100-fold, and वो उसी रेशियो से वापस आएगा जितना ज्यादा उसमें हम फीलिंग डाल के देंगे, ठीक है। So a $50 can bring you back hundreds of dollars. So when you are writing that thank you paid or thank you for the money, you have to feel that gratitude. In fact, जब आप डायरेक्ट पैसे भी दे रहे हो किसी को तो भी आपको डालना, ये तो हो गया आपको बिल पे लिखना है, ठीक है। उससे ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि आप जब पैसे ही दे रहे हो तो भी आप उस पर उतना ग्रैटिट्यूड, उतना विशेस करके दो। Yeah, so let's start this. And money क्या है, ये बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, because you can see it. Like I told you ना, I read half the chapter today and आज ही मेरे को शाम को पैसे आए, I was so happy. And मैंने जो मेरे को 1-2 बिल मिले थे, मैंने उनको इकट्ठा करके रख लिया कि I would be writing those bills tomorrow. Like each time I would forget. जब ये सेशन हम करते थे, नॉर्मली आता था, हम अपना लिख के रख देते थे। This practice is telling us that we have to collect 10 bills. तो कई जन ने याद रहा नहीं, प्रैक्टिस आने वाली थी ना, तो हमने बिल्स बचा लिए। So this is the first time that I have actually done, I've collected the bills that I will fill those tomorrow. Yeah, so do this practice, and if you are doing it the way Rhonda Byrne is telling us, you will be getting, आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, ये भी बहुत जरूरी है, हमेशा जरूरी नहीं होता है, जरूरी इन द सेंस लाइक हमेशा कोई ये नहीं कि आपको पैसे ही मिले, आपको डिस्काउंट मिला, आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस मिल गई, आपको कुछ फ्री चीजें मिल गई, आपको किसी ने गिफ्ट दे दिया, आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, मतलब यू आर गेटिंग मनी, ठीक है। तो कोई भी तरीके से आपके पास वो पैसे आ सकते हैं। या लाइक आई टेल यू, अभी because I started this magic session, अभी मेरा ड्राइवर नहीं था, he'll be joining, he had gone on a holiday, तो अभी हम उबर से जा रहे थे, तो शुरू में उसमें मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल दैट, तो थोड़ा उसका प्राइस अच्छा से ही आ रहा था। तो बट फिर भी whenever I was giving the cash to the कैबी, हम उसको खूब ब्लेस करके दे रहे थे, बिकॉज आई वाज आल्सो प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे। और अभी 2 दिन से जितने भी हमने 4-5 ट्रिप्स लिए, हर ट्रिप पे मेरे को 5% ऑफ मिला। आई वाज लाइक सो हैप्पी। शुरू में बिफोर दिस प्रैक्टिस आई वाज 5%, पहले तो ये लोग सरचार्ज लगा रहे हैं, एंड देन उसमें ओनली 5% डिस्काउंट। अर्लियर आई वुड थिंक दैट, बट अभी हमको ये समझ में आने का, दीज आर स्मॉल मैजिक्स दैट आर हैपनिंग, सो आई हैव टू फील हैप्पी, आई हैव टू एक्नॉलेज इट। तो हम जितना वो डिस्काउंट आ रहा था, आई वाज लाइक वाओ, एंड जितना ज्यादा आप उसको अप्रिशिएट करोगे with these powerful superlatives, yeah, wow, amazing, fantastic, fabulous, awesome, आपके डिक्शनरी में अब ये सारे वर्ड्स आने जरूरी हैं, ठीक है। अब हम लोग को 1 हफ्ता से ऊपर हो गया है ये मैजिक बुक करते हुए, ठीक है। तो आप देखो, आप दिन में कैसे वर्ड्स यूज करते हो। आप क्या ये बोलते हो, ईक्स कितना गंदा खाना बनाया है, ऐसे बोलते हो, या कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आप कैसे बोलते हो। नीतू जी आप तो नहीं बोलते, मेरे को पता है, आपने पावर भी कर लिया, मैजिक भी कर लिया, आप तो नहीं करते होगे, ठीक है। सो आपका जो रिएक्शन होता है कोई भी चीज में, आप देखो, अगर आपका मन हो रहा है जोर से ओ गॉड कितना गंदा है, तो आपको उसको बहुत ज्यादा टोन डाउन करना है, ठीक है। और अगर कुछ थोड़ा सा भी अच्छा हुआ है तो आपको और ज्यादा एम्पलीफाई करना है, ठीक है। तो ये करने से आपके लाइफ में और अच्छी चीजें होंगी, ठीक है। और जो गड़बड़ हो रही है, जो आपको नहीं अच्छी लग रही, वो और कम होती जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, दैट हाउ यू आर रिएक्टिंग, व्हाट वर्ड्स यू आर यूजिंग इन ऑल द एरियाज। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ चल रहा है, तो अगर आपको ज्यादा खराब लग रहा है, उसको जितना आप जैसे बोलते हैं ना, उसको एकदम हल्का कर दीजिए, अपने बातों से एकदम हल्का कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके मम्मी ने भी पूछा कि क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड सीरियस लग रहा है, तो क्या होता है, जनरली वी वुड स्टार्ट क्राइंग, और ज्यादा उसको बता दे मेरा तो दिल टूट गया, मेरा तो इतना खराब लग गया, वी वुड डू दैट। बट आफ्टर द मैजिक बुक यू शुड बी सेइंग नहीं मम्मा कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट शुड बी योर थिंग, बस हल्का सा कुछ हो गया, एकदम ठीक हो गया, लेकिन ठीक है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू इफ यू वांट the universe to make your relationships better, if you want your health to improve, to stop talking about any breakdowns that are happening, ठीक है। जितना कम लोगों से आप बोलोगे उतना कम वो कंप्लेंट्स हुई, ठीक है। तो उतना कम आपको उस पर्टिकुलर एरिया के लिए ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा टू गेट अबंडेंस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। मनी का साइकिल बहुत फास्ट चलता है, तो जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करोगे उतने जल्दी आपके पास वो मनी घूम के आएगा, ठीक है। कंप्लेंट तो करना ही नहीं है, भूल से हो जाए तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है। और हम लोगों ने कल पढ़ा ना कि अगर आप जनरल में भी नॉर्मल चीजों को खूब अप्रिशिएट करते रहते हो ना, वेदर,
लाइंस हम लोग पढ़ रहे थे ना, जब हम लोग कंप्लेंट्स करते हैं नॉर्मल चीजों की तो हमारे लाइफ में हैप्पीनेस कम हो जाएगी, हम ड्रीम से दूर होते जाएंगे। तो आई वाज थिंकिंग हम लोग को नॉर्मल में भी हर चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स इंक्रीज द मनी, लेट्स बिकम दैट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, यू नो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर मनी। या प्लीज रीड, सॉरी Tarini, please unmute. Magic practice number 9, the money magnet. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, take any current unpaid bills you have and use gratitude's magical power and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Take 10 bills you've paid in the past and write across the front of each one of them the magical words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या सो आपने देखा है कोई बिल्स आते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी थैंक यू लिखा रहता है। हाँ, शॉप से जब आपने कुछ सामान लिया तो उसके ऊपर ऐसे ही लिखा रहता है, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, थैंक यू, विजिट अगेन। हाँ, कितने सारे जगहों में लिखा रहता है। तो आई नोटिस्ड इट आफ्टर, मैंने पहले भी पढ़ लेते थे बट आफ्टर रीडिंग दिस बुक आई अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस कि वो क्यों लिखते थे उसके ऊपर, कि वो हमको पहले से ही थैंक यू कर दे रहे हैं, ठीक है, कि हम वापस जाएंगे उस शॉप में, वो लोग ऑलरेडी हमको थैंक यू कर रहे हैं। हाँ, तो आप देखो कि वो लोग तो अपने हिसाब से लिख रहे हैं, अब हमको लिखना है कि अगर हम ये लिख रहे हैं तो मेरे पास भी और पैसे आएंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दिस प्रैक्टिस, इट इज रियली मैजिकल। मेरे को तो ये बहुत अमेजिंग लगती है। जो बिल आता है हम तो उसमें लिखते हैं, कच्चा बिल कभी कभी भूल जाते हैं, जब ये बुक करते हैं तब करते हैं, बट अदरवाइज व्हेनेवर आई सी यू नो आपके अगर अकाउंट से पैसे डिडक्ट होते हैं या आप किसी को पे करते हो तो भी आपको थैंक यू करना है। उसका एक मैसेज आता है ना, आपको थैंक यू करना है। अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, लास्ट में जब आप ओटीपी करने के बाद कुछ जब उसको कंफर्म करते हो तब आपको थैंक यू करना है कि थैंक गॉड मेरे पास इतने सारे पैसे थे कि आई कुड शॉप। अगर आपके पास अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जो भी अमाउंट आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट आया, किसी को आपने दिए थे वो आए, आपके क्लाइंट ने दिए, आपकी सैलरी आई, एनीथिंग दैट इज कमिंग टू यू हैव टू से थैंक यू कि यस अमेजिंग। और जितना ज्यादा आप एक्साइटेड होके, खुश होके उसको ग्रैटिट्यूड करोगे, उतना और आपका मैग्नेटिक पावर स्ट्रांग हो जाएगा फॉर दैट मनी, ठीक है। सो थैंक यू तारिणी फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस। Thank you for giving me the opportunity. Thank you. So I think let's do the gratitude and then we'll take some questions. Okay. And I want to tell you one tip that I do. हमने पहले भी शेयर किया हुआ है. Ashwin ma'am had told us I on and off do it. So I want you to start doing it at least and do it as much as possible. So first let's do the gratitude. Let's join our hands and close our eyes and pay gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the Supreme Power for giving us this wonderful life. Thank you for filling my life with abundance and luxuries. Thank you for giving me the love of my family and my loved ones. Thank you for the good health of all my loved ones and me. Thank you, thank you, thank you. Okay, so thank you everyone. So any question regarding the practice? Thank you. Thank you. ये जो आप ब्लेसिंग जो अभी किए हैं अपने, जो ग्रेटिट्यूड किए हैं, वो एक नोट आप हम मैसेज में डालिए। तो देखिए वो ना, वो ऐसे ही आ जाता है, हमने कुछ लिख के नहीं किया है। लिख के नहीं करते हैं, लेकिन एक बार हम लोगों को करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, इसलिए वो नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, आई विल सी। हमको लिखना भी तो उसी समय, आई थिंक ठीक है, आई विल राइट इट एंड शेयर इट विद यू, ठीक है। थैंक यू। ओके, यस यस। अगर एक आदमी एनवलप बना ले और जो हमारे पेड बिल है उसके अंदर में डाल दे और वो एनवलप के ऊपर में वैसे थैंक यू पेड अगर लिख दिया तो इज इट ओके? No, I cannot. It's not very clear. You are saying bill के ऊपर नहीं लिखी, खाली envelope के ऊपर लिखी। No. This is what you asked, ना? Yes. नहीं, ऐसे नहीं चलेगा।
वो तो रौंडाबन भी बोल देती ना एक संग कि आपको टोटल भी लिख देना है. Just 1 second, there is some disturbance. It's like I'll mute everyone and then you ask. Okay, sorry, I'm muting everyone once. Yeah. Yeah. So you are saying instead of writing on each bill, you want to put all the bills in an envelope and write on top of it. Yes. नहीं नहीं, 10 bills तो ही लिखने हैं, आप एक एक बिल की लिखो. It's telling us that you have to feel gratitude for each good or service. Okay. So अगर आप उसके ऊपर ही लिख दोगे तो आपको कैसे पता कि आपने क्या गुड्स यूज किए हैं, आपने क्या सर्विस यूज किए हैं, है ना. तो उसके ऊपर नहीं लिखना है. फॉर ईच बिल, लाइक सपोज आपने टेलीफोन का बिल आप पे कर रहे हो तो आपको उस पे लिखना है थैंक यू पेड एंड यू हैव टू फील ग्रैटिट्यूड फॉर द गुड इंटरनेट, गुड कनेक्शन, गुड नेटवर्क. या आपको उसके लिए करना है. इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो आपको उस पे लिखना है, और जितने बार आप लिख रहे हो उतना ज्यादा आपको वो उस प्रोडक्ट के लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है. ओके, सो वी हैव टू डू इट like the book. Okay, we cannot do some shortcuts. Then our magnetic force will also be like, you know, आज money आ गया, कल वो वापस उड़ के चला जाएगा. We don't want that now. So let's do it the way the book is telling us. So we have to do it for 10 bills. Yes, for tomorrow's practice we have to do collectively 10 bills. Yeah, 10 उन्होंने बोला है. Yeah, 10 paid bills. माने आपके पास के like recent past, not कि तो ढूंढना पड़ेगा. हाँ, तो ढूंढना पड़ेगा. अगर आपने कुछ ऑनलाइन पे कर चुके हैं, ठीक है, यस, ढूंढना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आई एम गेसिंग केतकी सब फिल कर देती होगी. ठीक है, तो चैत्रा आपको ढूंढना ही पड़ेगा. मैं ढूंढना पड़ेगा मतलब मैंने, मुझे लगा कि आगे वाले देखना है या कैसे, मैंने वो इकट्ठा करके एक एक करना पड़ेगा, ऐसे इमेजिन करके नहीं कर सकते. नहीं नहीं नहीं, लिखना पड़ेगा. लाइक प्रॉपर्ली लिखते हैं हम तो. लाइक इफ आई सी, I also have a question. हाँ, यस, लाइक अभी तो मैंने थोड़े थोड़े मिक्स कर दिए, बट आई राइट इट्स लाइक सी आई तो मेक अ स्माइली आल्सो. Someone had shared in I think one of the first sessions that they make a smiley. तो मैं तो हमेशा like see मेरे drawer में ही रखे रहते. Can you see it? I write on this. Yeah. I write thank you paid and I make a smiley because someone said smiley भी बना देते हैं happily. So I said I happily make a smiley in all my, you know, whenever I am writing. Yeah, we have a lot of unpaid I collected for tomorrow's practice. Yeah. So someone else also had a query. Miss Chandra, I have it. I will show you this. Just come on the fridge and see. Yeah. Yes, you can do that. Yeah. So Khushi, who was asking? Me. Yes, Myra. Yes, please ask. Yeah. Miss, I missed the children's session, so I'm now in the adult session. Okay. How will I do this practice? So what you have to do is, you know what mom spent on you, right? कुछ monthly आपका tuition का bill होएगा. Yes. Maybe do you have a separate phone for you? Individual Yes. phone? Yeah, so your parents must be paying something for that telephone bill. आप वो amount पूछ के आप paper पे लिख लो, या अगर आपका bill ही separate आता है, you can take that bill from her and write it on top of that. Your stationery, maybe your tuition fees. So all those things you can write on small paper. You can write the, you know, amount and the, you know, the item that has been spent on you. उसके ऊपर में you can keep writing. Okay, you can write about the tuition fee. Maybe you have a maths tuition or something, you know, and maybe you're doing some extra classes. You can write that item amount and then you can write for that. Okay? And in your case, if mom has paid for it, then you'll write thank you paid. If she has not paid, you have to say thank you for the money. Okay? Okay. Yeah. Thank you. Thank you. And how old are you? हम लोग जो ऑनलाइन पे कर रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए भी कैसे, तो वो अमाउंट अभी हम लोग पेपर पे लिख के थैंक यू पेड कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. Yes. और एक पूछना था, screenshot of, we can take a screenshot of that bill which is like phone पे से किया है तो screenshot लेके उसके ऊपर doodle से thank you. वो भी I do that. Okay. Like if I pay by phone pay or WhatsApp, I take a screenshot and with the crop with the editing thing I write thank you on it with hands. Okay, but if you write it in hand, that's okay. But I feel ऐसे लिखने से भी easy, जैसे आपको easy लगे. See, feelings are more important. ठीक है, अगर आप feelings से लिख रहे हो, you know, maybe if I am doing like how Ketki is saying, मैं तो उसका लिख ही नहीं पाऊंगी, तो मैं तो गुस्सा ही हो जाऊंगी. Like I am very bad at all that, you know, कि उसके ऊपर उंगली से लिखना होता है ना, तो screenshot पे लिखना, तो मेरे तो लगता है उल्टा ही reaction होता है. So I prefer writing it on paper and, you know, feeling that. So आपको जिसमें अच्छे से feeling आ रही है, you can do that. Abarna, online you can download invoice also. You can download invoice and write on, you know, उसके subject में लिख देना, लिख भी सकते हैं जैसे रौंडाबन ने बोला हुआ है. अब ऐसे भी कर सकते हो. You can download it and then type it out on top of that. See, it is a question of feelings. जितना ज़्यादा आप feelings लेके आओगे उतना अच्छा रहेगा.
ठीक है, जैसे आपको फीलिंग्स आ रही है, इफ यू फील कि नहीं उसको डाउनलोड, जिसमें आपको लगता है कि एफर्ट करके, मेहनत करके एंड यू आपको लगेगा कि क्यों ये कर रहे हैं हम, तो वैसा करिए जिसमें आप कंफर्टेबली फीलिंग के संग कर पाए। ठीक है। हाँ प्रिया जी, I'm मुझे 11. पूछना था कि मैं बहुत साल पहले ऐसे एक लाइक आई वाज एन एजेंट फॉर कलेक्टिंग मनी एंड ऑल। मैं एक कोई कंपनी के लिए मैं ये कर रही थी, तो मेनी ऑफ देम दे हैव इन्वेस्टेड नाउ सिंस 5 years द कंपनी इज नॉट वर्किंग। तो अभी वो पैसे मतलब दे आर सेइंग कि आफ्टर सेलिंग लैंड एंड ऑल वी विल गेट द मनी बैक, बट टू गेट दैट मनी व्हाट शुड आई राइट? To get that money, अच्छा, when you get that money, so this is now we are talking about a dream, right? हाँ, तो आपको जब पैसे मिलेंगे आप क्या करोगे? नहीं वैसा नहीं, अभी वो मनी मिलने के लिए मुझे मतलब अभी वो बहुत जो इन्वेस्टर्स थे मेरे पास जिन्होंने मेरे थ्रू वो कंपनी में इन्वेस्ट किए, हाँ, अभी वो लोग मुझे पूछ रहे कि व्हेन वी विल गेट दैट मनी, बट आई टू डोंट नो, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से 2 साल और लेट हो गया है। सिंस 5 years द कंपनी वाज इन कोर्ट एंड ऑल, बहुत कुछ प्रोसीजर हो गया, बट दे आर सेइंग यू विल गेट योर मनी एंड ऑल एवरीथिंग। हम लोगों ने आगे का प्रोसीजर भी बहुत कर लिया उसका, लेकिन अभी वो जल्दी मिलने के लिए मैं क्या करूँ? जो भी मैंने अमाउंट लोगों की इन्वेस्ट किए वो एक पेपर पे लिख के थैंक यू फॉर मनी ऐसा करूँ तो ठीक है? वो तो मैंने ड्रीम लिस्ट में वो कंपनी का नाम लिख के आई एम डेली गिविंग ग्रेटिट्यूड आल्सो, एंड इन द ड्रीम लिस्ट आल्सो आई हैव रिटन दैट। You have to visualize, okay, and you have to visualize every day you thank the company in your blessings, right? I am doing that, and इसमें visualization I think is very important, okay, and then you have to thank all the investors for being so patient and kind, and ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा डेली ब्लेसिंग्स में। आप इन्वेस्टर्स के बारे में लिखो, उस कंपनी के बारे में लिखो, ठीक है, आप ऐसे ही करना पड़ेगा। अभी ब्लेसिंग्स तो फिर 10 ब्लेसिंग्स उसी में हो जाएंगे, सो आई विल डू वन कॉन्सेंट्रेटेड, एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड एक, हाँ अलग बना लो, अब आपको लगे एंड डेली आई विल राइट फॉर दैट। एंड किसी का फोन भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, जस्ट बिफोर टेकिंग द कॉल और द मैसेज, जस्ट से आई एम सो थैंकफुल दैट द इन्वेस्टर इज सो काम एंड पेशेंट एंड हैप्पीली वी कुड टॉक। आप जितना ज्यादा उसके लिए पहले से ही थैंकफुल हो जाओगे उतना और अच्छा रहेगा। That's what I feel. Okay. Ma'am, I had a question. Yes. Thank you. Ma'am, actually, I'm a day trader. I'm a stock trader, and every day मुझे day के end पे बिल आता है मेरा, जो भी day का मेरा buying and selling होता है every day. तो मैम मुझे रोज का लाइक डेबिट या क्रेडिट जो भी हो रहा है दोनों के मेल्स आते हैं, तो मुझे वो सेल्फ को मेल वापस सेंड करके थैंक यू बोलना है या पेपर पे लिखना है? देखिए, रॉन्ड नंबर ने हमको दोनों ऑप्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके मेल में आते हैं तो आप अपने आप को फिर से मेल करिए और उसके सब्जेक्ट में लिख दीजिए थैंक यू फॉर द मनी इफ यू हैव टू पे, ओके, एंड इफ यू हैव रिसीव्ड इट यू हैव टू राइट थैंक यू पेड। ठीक है, सी आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस डेबिट क्रेडिट, तो आप वो समझ लो जो आ रहा है, सॉरी जो आपको पे करना है उसके लिए लिखना है आपको थैंक यू फॉर द मनी, और जो आप पे कर चुके हो उस पे लिखना है थैंक यू पेड। ठीक है, एंड व्हाइल यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस कीप गिविंग ग्रैटिट्यूड टू द स्टॉक एक्सचेंज, टू द ट्रेडिंग थिंग, टू द नेट, एवरीथिंग। ठीक है, उतना ज्यादा आपका हाँ, एक्चुअली वन मोर थिंग, मैं मतलब ग्रेटिट्यूड में बहुत बार लिखता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल फॉर स्टॉक मार्केट आई राइट आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर स्टॉक मार्केट बिकॉज आई एम एबल टू अर्न ह्यूज मनी एवरी डे, and like I also give like gratitude to my investors and other things. तो इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं? इतना ज्यादा माने एक आपका जो भी स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है तो भी आपको थैंक यू करना है, किसी और का स्टॉक ऊपर जा रहा है तो भी आपको थैंक यू करना है। ठीक है, माने आप सोचिए कुछ भी हो रहा हो, यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल, आपको पूरा टाइम ग्रैटिट्यूड करते रहना है। ठीक है, जितने इन्वेस्टर्स का आपसे फायदा हुआ है उनको भी ग्रैटिट्यूड करना है, जिनका अगर कुछ गड़बड़ हुआ भी है तो उनको भी थैंक यू करना है, माने पूरा टाइम आपको थैंक यू करना है। आप आपके लैपटॉप को आप लैपटॉप पे करते हो तो लैपटॉप पे, फोन पे, पेपर में, माने लाइक आपके बैंक के लिए, ठीक है, हर चीज के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। आपके बिजनेस से रिलेटेड, जैसे हम लोगों ने वो चैप्टर किया था ना वर्क्स लाइक मैजिक, आपके काम में जितनी चीजें यूज हो रही हैं आप हर चीज के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, आपने कोई पेपर में पढ़ा, उस आपके जो भी ट्रेडिंग के लिए है उसको आपको थैंक यू करना है। इट्स लाइक आपको कोई टिप दी किसी ने, आपको उसके लिए भी थैंकफुल होना है। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप अपने वर्क से रिलेटेड थैंक यू करोगे उतना अच्छा। और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि आपके वर्क में पूरा टाइम पॉजिटिव बोलना, राइट, बट आपको कोशिश करके बोलना ही होगा। ओके,
एंड मैम क्रेडिट मतलब पैसे आ भी रहे हैं या तो बिल पे भी हो रहा है, तो दोनों में सेल्स को मेल करना है ना एट द एंड ऑफ द डे। हाँ एकदम, यस। थैंक यू। और उसके सब्जेक्ट में आपको लिखना है, ठीक है। अगर आपको लगे बाय चांस कि नहीं ये तो टू मच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आप बस पेपर पे लिख लो। जैसे एक छोटा सा कच्चा बिल बनाते हैं ना, अब जैसे अब जब हम सैलरी देते हैं, मेरी कोई पे स्लिप नहीं होती है, तो हम तो उसका पेपर में बना के ही लिख लेते हैं, ठीक है। लाइक दिस मंथ सैलरी, अब जैसे कल प्रैक्टिस है, अभी हमने नहीं दी है, तो आई राइट थैंक यू फॉर द मनी, तो वैसे लिख देते। फिर जब दे देते हैं तो हम उसके ऊपर लिख देते हैं थैंक यू पेड। तो अगर आपका ऐसा सिस्टम है तो आप पेपर पे बना लो, अदरवाइज यू कैन जस्ट फॉरवर्ड इट टू योरसेल्फ अगेन एंड राइट इट इन द सब्जेक्ट, ठीक है। मैम तो फिर क्रेडिट होगा तो उसे कैसे लिखना है? क्रेडिट मतलब आ रहे हैं ना पैसे, सॉरी आ रहे हैं कि आपको क्यों लिखने? आ रहे हैं या तो जा रहे हैं, दोनों के लिए। ये तो है कि जाने, ये जो प्रैक्टिस है ये तो जाने वाले पैसे के लिए, जाने के लिए। यस आपके पास आए हैं तो आपको ऐसे ही थैंक यू होना है कि ओ थैंक यू कि मेरे पास इतने सारे पैसे आए, ठीक है। और जहां से पैसे आए उनको थैंक यू। ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है कि आपको आपके बिजनेस से मिल रहे हैं, या आपको आपके पेरेंट्स से मिल रहे हैं, या हस्बैंड से मिल रहे हैं, कोई शगन मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, अब माने आपके पास आया तो इसे थैंक यू, ठीक है, ऐसे करना है। ओके अच्छा, ये जो क्रेडिट आ रहे हैं ये आपके नहीं है, इसलिए आप पूछ रहे हो क्या? इन्वेस्टर, ये जो क्रेडिट में आ रहे हैं वो आपके नहीं है, इन्वेस्टर के हैं, इसलिए पूछ रहे हैं क्या आप? नहीं मेरे ही है, लाइक दोनों के सबके अलग अलग अकाउंट्स है, बट मैं मेरे लिए पूछ रहा था। हाँ तो आपके लिए पूछ रहे थे, तो आपको जब भी आए जो भी पैसा है, अगर आपके वर्क से नहीं कहीं और से भी आ रहे हैं, कोई बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, या किसी ने आपको पेमेंट किया है कोई चीज का, तो वो आपको थैंक यू करना ही है। वो तो बिना माने बोलना, माने पैसे आपके पास आए मतलब थैंक यू, जिसने दिए। वो ब्लेसिंग्स में कर सकते हैं ना सिर्फ? वो तो ब्लेसिंग्स में कर सकते हैं, ये तो आप थॉट में कर सकते हैं कि आपको तो मैसेज आया ना, आपने तुरंत बोला वाओ आई एम सो हैप्पी, थैंक यू फॉर दिस मनी, ठीक है, ऐसे करना है आपको। वो तो हर जन के लिए, नॉट जस्ट कि आप ट्रेडिंग में है, हर जन के लिए। माने हमारे अकाउंट में कुछ ना कुछ तो आता ही है ना मैसेज, तो जैसे ही मैसेज आया थैंक यू, आपके हाथ में पैसे आए आपके खर्चे के लिए, आपके यूज के लिए, यू हैव टू से थैंक यू, ठीक है। उस समय तुरंत थॉट में भी थैंक यू होना है। ओके I have a question. Yes, Harshi, just your query is okay? It's answered? Yeah, ma'am. Thank you. Okay, thank you. Yes, Tarini, and then Khushi. Yeah. So my question is that if someone gives you a gift, like if just a book ka gift, yeah, any gift, but and you get that invoice, so can you write thank you paid on that as well? Because someone did pay for it. No, you cannot pay for that. You cannot write. I think you should not be writing on that, because आपने वो पैसे नहीं दिए, आपको तो जब गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, तो वो आपने पैसे दिए। I mean, जो आपको गिफ्ट मिल रहा है उसके तो पैसे आपने नहीं दिए। So you have to say thank you to the Amazon company कि उसके थ्रू आपको मिला, to that person जिसने वो स्पेंड किए, ठीक है, उस बुक राइटर के लिए। You are not to write on that bill, because उस पे हम ही को लिखना है जिसपे हमने स्पेंड किया। पर वो भी तो मेरे लिए स्पेंड हुआ ना, लाइक मेरे लिए, ठीक है, तो आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है, जो आपके पास से जा रहा है, सी आपके लिए हुआ, लेकिन उसको पैसे देते टाइम तो आपके पैसे तो नहीं लगे ना, यू डिड नॉट स्पेंड योर मनी ऑन इट, यू डिड नॉट स्पेंड योर अर्न्ड मनी ऑन इट, ठीक है, तो उस पे नहीं लिखना है आपको। बट ये पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया होगा तो, so like you said to somebody, Khushi, I think, parents are paying for the Myra, parents are paying for the stationery, parents are paying for the tuition fee, so you can write a kacha bill and write thank you. Yes. So that means somebody else is paying for you and she's writing thank you. But that is not a gift. But Ketki, that is not a gift, na? She is asking about a gift, है ना? Okay. आपको गिफ्ट के लिए नहीं करना है। सी ऐसे तो हम भी करते हैं, लाइक यू नो आई हैव नॉट पेड फॉर द वेजीज, बट हमको जब ये प्रैक्टिस करनी होती है, आई नो कि वेजीज आई हैं, सो आई राइट इट ऑन बिहाफ ऑफ माय पेरेंट्स और ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली, ठीक है, बट गिफ्ट के लिए तो हम ऐसे नहीं करते हैं। अदरवाइज कोई भी बिल मिले तो आपको ग्रेटिट्यूड करके उस पर लिख सकते हो, ठीक है, बट ओके तो मतलब अगर नेसेसिटी है तो हाँ स्पेसिफिकली तो यस, स्पेसिफिकली फॉर टुमारोज प्रैक्टिस आई वुड नॉट सी, उस पे तो लिखना सारे बिल्स पे ही लिखना बेस्ट होता है, बट स्पेसिफिकली कि गिफ्ट आया तो उसके बिल पे भी हमको लिखना है, दैट आई थॉट वाज नॉट ओके, अदरवाइज तो सब बिल पे ही लिखना बेस्ट है। I get your point. Okay. Thank you. Thank you, Tarni, for this question also. Yeah. Yes, so Khushi, she's gone. Khushi also had a question. Ma'am. Yeah. Ma'am, I was asking that if we for example, we are paying for something and that too a good money is going for it, but
it's not of much use. I mean, it kind of went for waste. It didn't last for a long time. Like, say we invested in something or we paid for something, but nothing happened in return. And then how do we, I mean, obviously that money must have done some good to somebody, but for us, it was kind of it was not a profit for us. I don't want to use a negative word. Yeah. So Khushi, I feel now you have to come out of this. I have understood what you are saying. So you have to come out of that. You have to, just let go of that. You have to see, ki, theek hai, I got the chance to use that money for someone else's benefit. Okay, you have to come out of that friend wala thing and all that. Okay, so you have to feel happy that you got the chance to give that gift to someone. You were blessed to have that money to give that gift to someone. Okay, so you have to start feeling like that. Like, ma'am, I want to tell you something. So basically, after I finished my schooling, I told my parents I want to do this professional, some specialized post. I want to do that. So my parents gave the money for that, and I just did that for 3 months. And after that, I didn't like it. So I decided to leave it. So that thing continuously goes in my mind. Like, why did I do this? I should have done my homework well. Because of me, the money is now gone. I only did it for 3 months. And then I left it in between. Okay. So what you can do is, so you want to do gratitude for the money that you got, right? So you should write that I'm so blessed, that my parents gave me the money to, do that course. So I am blessed to have such parents who spend that money on me. And you realize that that course was not for you in the future in just 3 months. Otherwise, what happens? People do engineering, people do MBA, and then they end up writing books. तो आप सोचो कितना टाइम इन्होंने इन्वेस्ट किया, कितना अपने पेरेंट्स का पैसे किया होगा. You just found out that that course was not your calling in just 3 months. You can think like this. Okay. There are people ना वो कितना सारा कोर्स कर लेते हैं, फिर एंड में जाके कुछ और कर लेते हैं, उनको लगता है नहीं that is not my calling. बट उनके भी तो पेरेंट्स के बहुत सारे पैसे लगे होते हैं. Here you realize कि नहीं हुआ, ठीक है, you have understood also that you should have done your homework well. So you've already learned your lesson that next time when you do something, you will be doing the research properly, and then you'll be asking to do that course. So you should take it like this. That's what I feel. Yes. Okay. I would like to add to this. Yes. When I was just started my CA practice, I became a CA in 2009. Okay. I came to Nagpur after completing my education, and I was like, yeah, I have to work and all that. So one of my senior, that he is my 10-year senior, I think. We were just talking something. He said, "क्या कर रहे हो?" बोला सर कुछ कर रहे हैं वगैरह वगैरह. बोले और क्या कर रहे हो? बोला सर अब देखते हैं अभी डैडी से अभी देखते हैं अभी और कैसे मांगे पैसे वगैरह. थोड़ा ऑड हो रहा है अभी तो बन गया वगैरह. I was 24 at that time. तो बोले क्या प्रॉब्लम है और मांग लो. बोला सर अभी कैसे उनको मांगना नहीं चाहिए. बोले अभी तुमने कितने साल मांग लिए? मतलब बचपन से तो मांग ही रहे. बोले और 1 साल मांग लो ना, और 2 साल पैसे मांग लो, प्रॉब्लम क्या है? बोला अब सर प्रॉब्लम अब मेरे पास कुछ आंसर ही नहीं था. तो ही टोल्ड मी कि देखो अभी तुमको जरूरत है तो अगर तुम मांग सकते हो पेरेंट्स से, एंड इफ दे कैन गिव, टेक इट. इट इज फॉर your benefit and their benefit also, because if I need the money today and they are having it, they can give it so that I become capable earlier, and later on I am only going to give it back to them. So we have to take it in that positive sense rather than हमने कुछ लॉस कर दिया या कुछ और कर दिया, क्योंकि इतने साल तो अपन ने उनसे पैसे लिए ही हैं. 10 साल 15 साल 20 साल बचपन से ले ही रहे. So yeah, I think we should take it in that manner. Okay. Yes. Yes. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Chaitra. Thank you. Yeah. Ma'am, I have a sharing. Yes. Wonderful sharings. Yes. Ma'am, actually, recently we bought a laptop at home. So we purchased that laptop from Flipkart. And then my dad discovered that they are running a scheme or something where you have to verify that you are a student and you'll get huge discounts and cashbacks on that thing. So I didn't have my ID. Like right now I'm in 12th, but I didn't have any ID because we are not going to college. So I just had paid my fees
before that, and I just sent the receipt. I uploaded that, and they verified it, and they verified me, like they accepted my document that I had provided, and now they have given me this, they've given me that premium membership of Flipkart. Wow, very nice. And So this I happened. get, so I get free deliveries and discounts, huge discounts on whatever I buy now, and that premium membership is for 3 months. So I just realized it now. It's been a week actually. I realized it now while I was writing my blessings, like in the morning. So I would like to thank for that. Yeah, wonderful, wonderful. And all this happened because you started writing your blessings. I think you started this book a little earlier. I think just maybe 10 days before we started, right? Yes, I was practicing by myself. Yes, so that's amazing. See, so all your blessings, how you have been grateful for the past things and the current things, that is what is bringing you magic. Yeah. So acknowledge it, be grateful for it, and more money will keep flowing. Okay. Yeah. Thank you. Thank you for sharing. Yes. So any other question? Yeah, Priya, I want to I had a ask one sharing too. question. Yeah. Yes. Neetu ji, no? Yes, Neetu ji. Say. हाँ प्रिया जी, जब स्टाफ को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो जब उन लोग को पैसे देते वक्त एक पेपर में नोट ऐसे लिख के दे सकते हैं ना कि थैंक यू पेड? उनको नहीं देना है, उनको वो पेपर नहीं देना है। ये जो पेपर है जो आप लिखते हैं वो अपने पास रखना है। ओके, आपको उनको वो पेपर नहीं देना है। आपको उनको अगर सैलरी देनी बाकी है अभी, ठीक है, जैसे मे बी आज तो 23rd ही है, आप जब उनको सैलरी दोगे तो अभी तो टाइम है, आई गेस 30th को दोगे आप, या 15th को दोगे, तो भी आपको तो देना है। तो आपको पेपर में लिख लेना है कि उनको आप कितना सैलरी देते हो, किस मंथ का सैलरी दे रहे हो, और उसके नीचे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, क्योंकि आपने अभी उनको पेमेंट नहीं दिया। वो पेपर आपको अपने पास ही रखना है, उनको वो पेपर नहीं देना है। ठीक है, अगर आप उनको दे चुके हो, मे बी आपने 15 तारीख को किसी को दी होगी, या दूध वाले या आयरन वाले, किसी को भी आपने 15 तारीख को दी है, तब उस बिल के ऊपर आपको लिखना है थैंक यू पेड। अगर आपने सैलरी दी है, उसका कोई बिल नहीं है, तो आप उसका एक कच्चा बिल बना के, जैसे बिल तो हम लोग को मिल जाता है ना, हम लोग अपने पास रख लेते हैं, तो आपको बिल के ऊपर लिखना है थैंक यू पेड और अपने पास रख लेना है। अच्छा, फिर उस बिल को क्या करेंगे, क्योंकि हर मंथ ही होगा ये? हाँ, तो आप उसको इकट्ठा कर लीजिए, बाद में भी जैसे जब आपको लगे कि हाँ बहुत दिन रख लिया है आपने, नेक्स्ट बिल्स आ गए हैं उसी टाइप के, तो आप उसको न्यूज़पेपर के संग, जैसे जाते हैं ना न्यूज़पेपर, आप उसके संग उसको दे दो। या इट शुड नॉट बी कि आप ही दे दिया न्यूज़पेपर के अंदर, नहीं, इट्स लाइक आप मे बी जब तक उसी टाइप का नेक्स्ट बिल नहीं आ जाए, कीप इट फॉर अ मंथ और सो एंड देन गेट स्टार्टेड। थैंक ओके, थैंक यू, गुड फॉर द, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। अगर और बाय चांस मैंने ही ऐसा इंडिकेट कर दिया है कि आपको उस पर्सन को दे देना है, तो उस पर्सन को नहीं देना है, ये हमको हमारे पास रखना है। ठीक है, ओके ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन और Priya ji, I have one more sharing. Yes, Savita ji, yes, please. Yeah. जो unusual desire में मैंने लिखा था ना, I'm having Pichu and Peacock, आज दो एक साथ fulfillment हो गया। Wow, very nice, very good, very nice, very good. थोड़ा लेट से हुआ बट ठीक है, हो गया। देखिए आपने लिखा था, Two together, आज शाम को ही हुआ दोनों। ओके, एक्सेलेंट। और आप इस बीच में सोच रहे थे क्या कि मेरा ये कब दिखेगा मेरे को, ऐसा कभी आपने सोचा था? नहीं, मैंने कहा काफी दिन हो गया, हुआ नहीं है, ये जरूर मन में आया था 2-3 बार, बट फिर हो गया। एक्सीलेंट। या एंड अभी रिसेंट में जैसे जिस हम लोग के बड़ा बाजार में शॉप है होलसेलर की, तो फायर ब्रोक आउट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, एंड थोड़ा बैक ऑफ द माइंड, जैसे पहले होता था कि नेगेटिव थॉट्स आते थे, अगर फायर पकड़ लेगा तो ये क्या होगा, वो होगा। इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ, मगर ये था सम वरीज वर देयर कि, बट ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे थे, मगर आई वाज कि हाँ एवरीथिंग विल बी सेफ, सब कुछ ठीक रहना चाहिए। आई वाज कीपिंग द ब्लेसिंग्स, वो मन से ये हो रहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, कुछ किसी को भी कुछ नुकसान नहीं हो। तो वो पॉजिटिव थॉट्स में थोड़ा वो चेंजेस आ गया। ओके ओके, वेरी गुड। तो ये चेंज बहुत इम्पोर्टेंट है, और फिर वहाँ पे बहुत, आई मीन कितना बाद में मैंने ब्लेसिंग्स में और लिस्ट में लिखा है।
थैंक यू एंड मोर मैजिक टू यू, कीप डूइंग द प्रैक्टिसेस। ये क्या होता है, ये जो अपन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आपने शेयर किया ना, कुछ ब्रेक डाउन होता भी है तो उससे अपन जितना जल्दी बाहर आ जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या थैंक यू मैम, थैंक यू या यस। So someone else has a question or a sharing? Yes, I have a question. Yeah. Smita ji, I think there is some, major disturbance happening around you. Sorry, आप please उसको check करके फिर unmute कर लीजिए. Yes, Chaitra, you have a question? Yeah, मैं को just एक चीज पूछना था। एक तो जो थैंक यू अपने को बिल में करना है, तो अगर अपन बहुत सारे बिल में जैसे ऑफिस में ये अपने असिस्टेंट के थ्रू मैनेजर जैसे वो कर सकते हैं क्या कि बिल में ही थैंक यू पेड करके स्टैम्प बना के, और वो भी ऑफिस की मैनेजर को असिस्टेंट को बता के कर दिया, दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगी। ये तो अमेजिंग है चैत्र। पता है ये क्वेश्चन और इस टाइप का आंसर आशमीन मैम के सेशन में बहुत पहले हुआ था कि मैंने बोला कि मैं अकाउंटेंट को ही बोल दूंगा ना, थैंक यू पेड का स्टैंप लगा देगा सबके ऊपर। तो आपको अगर अपने लाइफ में मैजिक चाहिए, आपको मनी मैग्नेट बनना है, तो आप लगाइए स्टैंप या लिखिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं उसके पास ही आए तो आप उसको दे दीजिए। This was the question. That I also got this question, amazing question from you, Chaitra ji. Seriously. नहीं इसमें, लेकिन अब अगर अपन इसमें तो अपन ने थोड़े दिन पहले असिस्टेंट की भी प्रैक्टिस की है ना, तो मतलब वो भी पार्ट ऑफ द वो है ही ना ग्रेटिट्यूड। तो वो जो असिस्टेंट है वो तो चेक कर रहा है कि आपका ग्रेटिट्यूड का लेवल कितना है, वो थोड़ी आपकी जगह ग्रेटिट्यूड कर रहा है। हाँ, ग्रेटिट्यूड तो आप ही कर रहे हो ना, कि असिस्टेंट कर रहा है। हाँ, तो ये क्वेश्चन आई एम लाइक आई एम सो अमेज्ड like that universe sent me this question through you. like seriously amazed. हाँ, तो उसमें यही था, उन्होंने तो आशमीन मैम ने तो यही कहा था कि अगर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो आप मनी मैग्नेट बनोगे। वो ग्रेटिट्यूड कर रहा है तो वो बनेगा। अगर वो कैसे थॉट से थैंक यू पेड का स्टैंप लगाएगा, हो सकता है वो गंदे मन से लगाए कि ये एक और एक्स्ट्रा काम आ गया, मेरे को अब एक तो स्टैंप ही लगाना है उसके ऊपर। नहीं, नॉर्मली पेड का लगा देते तो थैंक यू पेड लगा देंगे, बना देंगे मतलब। तो आपके मन में ग्रेटिट्यूड आएगा क्या उसके लिए? अब देखिए, आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन अगर देख रहे हैं अपन, तो अपन पैसे तो भले अकाउंटेंट दे रहा है यानी, लेकिन दे तो अपन ही रहे, मतलब यानी जो पैसे दे रहे हैं ओनर, देखिए आप पैसे तो अपने जा रहे, उसके थोड़ी ना जा रहे, वो तो सिर्फ देखिए प्रैक्टिस क्या है। एकदम आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन ये प्रैक्टिस क्या है? आप 10 बिल के ऊपर लिखोगे, जैसे स्मिता जी ने बोला ना, मैं एनवेलप के ऊपर ही लिख देती हूँ ना, 10 बिल अंदर डाल के एक बार मैंने लिख दिया थैंक यू पेड, तो आपकी फीलिंग कितनी बार आई? ठीक है, आपने एक बार लिखा थैंक यू पेड, या आपने लिखा ही नहीं, आपका अकाउंटेंट लिख रहा है, ठीक है, तो आपकी फीलिंग्स क्या चेंज हो रही है? चल भी आपने तो उसको ये लो, अच्छा इतना खर्चा हो रहा है, ओके ठीक है ये लो पैसे, ठीक है इतना खर्चा हो गया, ये लो अकाउंट से ले लो। आप तो आपकी उस समय ऐसी फीलिंग आएगी, लेकिन अगर आप एक एक आइटम के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी डिफरेंट टाइप की फीलिंग आएगी। आप उसको भी सिखा दो, उसकी भी लाइफ में अच्छा होगा, उसको भी सैलरी अच्छी मिलेगी, तो आपके थ्रू ही जा रही है, बट आपको भी करना है, ठीक है। तो इफ यू डोंट वांट कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन का आपको करना पड़े, तो जो आप इमीडिएटली आप कर रहे हो एटलीस्ट उसका आप करो। ओके, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। यस, अभी जैसे बहुत बार क्या हो जाता है कि आज जैसे स्टार्टिंग में आप बता रहे थे कि अपने को इन्हें कुछ ये नहीं उल्टी सीधी चीजें बात नहीं करनी है, नेगेटिव चीजें, हाँ उल्टी सीधी नेगेटिव चीजें नहीं करनी। अभी बहुत बार क्या हो जाता है, अभी जैसे दोस्त लोग मिल गए तो जनरल डिस्कशन हो जाता है ऐसी रैंडम, और नॉर्मली द ट्रेंड इज कि क्या चल रहा है, तो सब लोग क्रीवी करते रहते हैं। हाँ, तो नहीं करना। तो अभी टू फिट इन या कभी कुछ और कुछ बात करने को रहता नहीं, कभी अपन कुछ बोले तो अपन भी वही हाँ मैं, भले अंदर से लगता नहीं रहता अपने को कि अपन एक्चुअल में हो सकता है कि बहुत प्रॉब्लम में हो अपन, लेकिन वी डोंट वांट टू क्रिप, क्योंकि अपने बट बिकॉज इन द सोशल सेटअप अपन क्रिप कर, अपन भी हाँ ठीक है नहीं देखिए आपको चेंज करना पड़ेगा चैत्र, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन दीपिका जी आज अभी है नहीं, उन्होंने फर्स्ट सेशन में बोला था, बोले नहीं अब सब लोग तो फिर मेरे से कोई बात ही नहीं करेगा। नाउ शी इज हियर इन ईच एंड एवरी सेशन, आज वो मिसिंग है, ठीक है, बट शी इज हियर इन ईच एंड एवरी सेशन नाउ। उन्होंने आई थिंक जनवरी में ज्वाइन किया था, और अब वो भी हैं, उनके बच्चे भी कर चुके हैं सेशन, और वो भी है, ठीक है। राशि इज दैट यू? दीपिका जी डॉटर राशि ना, और खुशी मैं ही हूँ। ओ दीपिका जी हैं क्या? ठीक है, चुपचाप सुन रही है, देखिए आज ही नहीं दिख रही है या तो आपको ऐसा एकदम भी नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव बोलना है। देखिए
या तो आप चुपचाप बैठ जाइए उसमें, ठीक है, डोंट कंट्रीब्यूट। तो या आप उस टॉपिक को आप पॉजिटिव तरफ ले जा सकते हो, ठीक है। मे बी यू नो, आप जैसे हम लोगों ने कल ही लाइफ लाइन सीखी थी ना, कल की परसों, कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इसमें देखिए ये कितना फायदा है। अगर लोग पैंडेमिक के बारे में बात करें तो अब देखो, हाँ वो सब ठीक है, लेकिन आप देखो कितने लोगों का बिजनेस कितना अच्छा भी चल रहा है, ठीक है, सब लोग ठीक भी हो गए, ठीक है। वो सेकेंड वेव आई थी, अभी वापस सब लोग फिर से सब लोग काम स्टार्ट कर दिए हैं, लॉकडाउन के कारण सब कुछ ठीक हो गया है। तो यू कैन बी पार्ट इन दैट कॉन्वर्सेशन, बट यू हैव टू स्पीक अ लिटिल पॉजिटिव, माने यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन ना, आप ये कर सकते हो। जो लोग बात करें आपको क्रिप तो करना ही नहीं है, धंधा कैसा चल रहा है कभी नहीं बोलना है मंदा धंधा चल रहा है, ठीक है। हमेशा जो भगवान, आप ये बोलो भगवान की कृपा है, आप ऐसे बोल दो, ठीक है। ये आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा, अभी न्यू है तो ऐसा लगता है, बट ग्रेजुअली आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे नहीं बोलना, ये कंप्लेंट्स है। यू वर देयर इन द पावर बुक ना? नो नॉट देयर क्या? ओके, बहुत अच्छे से उस बुक में बताया हुआ है ना पूरा। और प्रिया जी, अगर अच्छा नहीं भी चलता, अपन अच्छा बोले ना तो धीरे धीरे होने लगता है। हाँ, एकदम अच्छा होने लगता है। जैसे कैसे अपने को तो बोलना भी नहीं है, यानी अपने को लग भी नहीं रहा है अच्छा नहीं चल रहा है, बट वो अब कुछ तो भी हो जाता है बहुत बार कि ऐसी वी आर स्टैंडिंग इन द ग्रुप और कुछ भी नहीं है तो कुछ तो भी उल्टी सीधी बातें करो, जस्ट टू आई डोंट नो व्हाट, बट उसमें भी आप ना वर्ड्स पॉजिटिव बोलो, ठीक है। अब जैसे आपको ये बोलना ही नहीं कि नेगेटिव बोलते हैं सब लोग, नहीं, आपको बोलना है सब लोग पॉजिटिव बोलना है, कोई पॉजिटिव नहीं बोलता है, माने आप ऐसे बोलो। लाइक आई विल टेल यू, हम ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से हम इंटीरियर डिजाइनिंग का अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स वर अमेज्ड कि तुम्हारे हर टाइम साइट चलती, लाइक आई यूज्ड टू से, वो लोग पूछते कितने साइट चल रही है, उससे 2-3 साइट चलते रहते हैं विद गॉड्स ग्रेस, हाँ। एंड फिर वो लोग पूछेंगे अच्छा जब साइट खत्म हो जाती फिर तुम क्या करते हो? ऐसे आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं कि एक साइट खत्म हुई और हम खाली बैठे हों। विद गॉड्स ग्रेस मेरी हर साइट हमेशा चलती रहती है, विदाउट नोइंग दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनीथिंग, आई वुड ऑलवेज से दैट। एंड एक्चुअल में हमेशा ही ऐसा हुआ है आज तक, मेरे को एक के बाद एक साइट मिलती गई। कभी मेरे मन में आता भी है ना कि अरे अब ये साइट फिनिश होने जाने वाली है, मेरी दूसरी साइट पहले रेडी रहती है, मेरे को दूसरा प्रोजेक्ट पहले ही मिल जाता है। तो आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही होता है। लाइक दीपिका जी सेइंग ना कि आप अगर नहीं भी ठीक चल रहा होता है, थोड़ा सा हमारे मन के हिसाब से नहीं भी चल रहा होता है, फिर भी आप यही बोलो कि अच्छा चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अगर आपको लगता नहीं अच्छा कैसे बोले, आपको लग रहा है नहीं आज में भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, से भगवान की कृपा है, यू नो, विद गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज ब्रिलियंट। आपको यही बोलना, इट्स ऑसम, अमेजिंग, फैंटास्टिक, फैबुलस, ये सारे जो वर्ड्स हैं आपको यही बोलना है। आपसे कोई पूछे आपकी तबीयत कैसी है तो आप क्या बोलोगे? बढ़िया है। बढ़िया है ना, तो आप ऐसे ही बोलो कैसा काम चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। ओके तो बोलना ही नहीं है, ओके मतलब नॉट ओके, ठीक है। इधर इट इज गुड और इट इज बैड, तो अगर आप ओके बोलते हो तो वो बैड की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक है। सो यू ऑलवेज हैव टू से ओके, ग्रेट, ब्रिलियंट, ऐसे चल रहा है। यस दीपिका जी, यू वांट टू ऐड टू दिस? अभी जैसे मैं आई तब से मेरे को रोज कंटिन्यूअसली ऑर्डर थे, तो एक हफ्ता हो गया था, नीलेश मेरे को बोले कि कल तुमको ऑर्डर नहीं है ना, तो हर्ष बोला अभी तक नहीं है पापा, आ जाएगा, और 2 घंटे के बाद में मुझे ऑर्डर आया, तो बोले हाँ यार तू तो सच में सही बोला। तो ऐसे होता है कि अपन जैसे बोलते हैं ना, ऐसे धीरे धीरे होने लगता है। हाँ, यस, वंडरफुल दीपिका जी, दैट आपको रोज ऑर्डर आ रहा है, अमेजिंग, मोर एंड मोर ऑर्डर्स टू यू। यस, थैंक यू। तो जैतर जी ना, ये आपको ही देखना पड़ेगा कि अब जैसे कोई क्लाइंट भी अगर हमको पूछता है ना कि अभी तो लॉकडाउन है, आपका काम ऐसे चलेगा, बोले नहीं मेरे तो सब साइट्स चल रहे हैं, हाँ 3-3 साइट्स चल रहे हैं। लाइक आई मेंशन्ड यस्टरडे ना, मिस्त्री कम आ रहे हैं लेकिन साइट तो चल रहे हैं, तो काम चलता रहेगा, आप जैसा बोलोगे वैसा ही होएगा। तो आपको धीरे धीरे यू नो, आपको देख के दूसरे लोग बदलेंगे, एकदम ऐसे ही होएगा। जैसे आप आ गए ना केतकी को देख के, राइट? हाँ, यस, तो वैसे ही होएगा। थोड़े लोगों को साथ तो मैंने बोल दिया, मेरे को फोन करते रहता, अरे यार ये नोटिस ये आ गया वो आ गया, बोलता अच्छा है ना यार ये आ गया तो अपने काम बढ़ जाएगा। हाँ, फिर अभी उन लोग के फोन आना कम हो गए थोड़े। यस यस, सी ऐसा ही होएगा। यस स्मिता जी, यू हैव अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग? थैंक यू। एक्चुअली मैम, आज मेरी मम्मा का है ना वॉलेट गुम हो गया है, तो मुझे वही पूछना था कि उसके लिए मैं क्या करूं? ये आपको मैग्निफिसेंट आउटकम करना है पहले तो। यू हैव डन दिस बुक अर्लियर? या हाफ सेशन, हाफ बुक। तो अभी तो आपको हम कैसे बताएं आपको क्या करना है? अभी तो let her visualize that she have got that wallet back
with everything inside. Yes, so that is the magnificent outcome ना, है ना? वो पावर में था ना, एक छोटी सी स्टोरी सेम ऐसी तो थी। इसमें मैजिक में भी है। नहीं की है ना, मैजिक में है ना, उसकी बेटी का गुम हो जाता है वो हाँ वही वही। Yes. So she was visualizing that thing. या आपको विजुअलाइज करना है, बट स्मिता अगर आप कर चुके हो ये बुक प्रैक्टिस तो आपको हम प्रैक्टिस नंबर बता देते हैं, आप वो वाला चैप्टर पढ़ के कर लो, ठीक है? बिकॉज अभी यहाँ बाकी ने नहीं किया है तो आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू। आपको मैग्निफिसेंट आउटकम करना है, प्रैक्टिस नंबर 21। इफ यू ऑलरेडी डन द बुक, आप प्रैक्टिस नंबर 21 कर लो। उनकी मम्मी को विजुअलाइज करना है। हाँ, और आपकी मम्मी को विजुअलाइज करना है, ठीक है? आपकी मम्मी को करना है, दोनों जन भी कर सकते हैं, ठीक है? जी सॉरी मैम, इसमें पॉजिटिव एक चीज बहुत अच्छी हुई। एक्चुअली उसी टाइम पे मम्मा मार्केट में थी और मैं घर पे थी, तो मैंने मम्मा को कॉल लगाया तो मम्मा ने उसमें से अपना फोन निकाल लिया और उसमें बाकी कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह, उनका आधार कार्ड या अदर थिंग, वो कुछ भी नहीं था। सिर्फ इतना ही था कि भी वॉलेट और 250 रुपीज। तो थोड़ा सा पहले हम लोग नाराज हो गए, लेकिन उसके बाद में हमने बोला ठीक है, मे भी हो सकता है वो किसी ऐसे पर्सन के हाथ में लग जिसको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और ऐसे पर्सन के हाथ में लगा हो, तो वी स्टार्ट थिंकिंग इन पॉजिटिव वे। yes I will just tell you ना कि I think 21 ही है, I will just check and tell you also, ठीक है? तो बट वो भी बात ठीक है, आपको बिल्कुल करना है कि जिसको मिला आप साइमल्टेनियसली उस अब बाकी चीजों को भी आप ग्रैटिट्यूड करते जो, जैसे आप कह रहे हो ना, जिसको मिला उसको भी ब्लेसिंग्स, अच्छा हुआ मेरा फोन तो मिल गया, यू नो, वो भी आप कंटिन्यूअसली रखो, ठीक है? एंड आई जस्ट टेल यू, I think it is 21 only, but I'll check in the book and tell you. Yes 21 is magnificent outcomes. हाँ, yes 21 is। रिया जी, मुझे क्वेश्चन आ रहा था। हाँ बताइए। अभी दोनों चीजें कैसे फील कर सकते हैं? वो मिलना भी उनको चाहिए कि मिलना, इसलिए वो विजुअलाइज करेंगे, और वो क्या किसको मिला वो ब्लेस्ड रहे, उससे ज्यादा जरूरत थी, दोनों फीलिंग्स एक साथ कैसे आई? ना एक के बाद एक आई होगी, लेकिन अगर आपको चाहिए है तो आप वो वाली फीलिंग मत लाओ, राइट? थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू चैत्र, आपको आई वाज तो काइंड ऑफ सॉरी लुकिंग फॉर द चैप्टर आल्सो, बट दोनों फीलिंग अगर आपको आ रही है तो ठीक नहीं है, आपको एक ही फीलिंग पे फोकस रखना है, ठीक है? ईदर यू बी ग्रेटफुल कि आपको मिल गया है, विजुअलाइज इट एंड यू आर हैप्पी, एंड आपकी मम्मा को इमेजिन करना है कि उनके हाथ में वो वॉलेट है, ठीक है? कि वो फील करें, ये सीक्रेट मूवी में भी था ना इस टाइप की चीजें, कि आप जैसे उसको गाड़ी चाहिए थी, उसको वो विजुअलाइज करता है ना, किसी के हाथ में टिकटॉक वो चाबी से वो गाड़ी को लॉक करता है एंड ही इज सिटिंग इन द चेयर एंड यू नो ड्राइविंग द कार। आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि वो वॉलेट आपके हाथ में है, आप उसको खोल के देख रहे हो उसके अंदर क्या क्या है, ऐसा पूरा आपको विजुअलाइज करना है। उस चैप्टर में डिट्टो यही एग्जाम्पल है कि उनका वॉलेट खो गया है एंड शी इज इमेजिनिंग कि वॉलेट के अंदर क्या क्या सामान है, और आपको पूरा टाइम जब भी वो सोचे अरे वॉलेट खो गया, बोलना ही नहीं, आपको यही सोचना है कि आपको मिल गया वो वॉलेट, ठीक है? और आपकी मम्मी को करना है ये, और आपको ऐसा सोचना है कि मम्मी मे बी इज टेलिंग यू कि वाओ मेरा वॉलेट मिल गया, ठीक है? ऐसा पूरा आपको सेटअप सोचना है मन में। और अब Priya, you're going to give some tip now of Ashmin ma'am, you said. हाँ, आई थिंक केतकी आपको तो पता ही है, बट दोज हु आर न्यू आई टेल यू कि आश्मीन मैम ने बोला है कि अगर हम लोग मनी के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, ठीक है, तो हम लोग कभी ना कभी तो किसी को देते हैं पैसे, राइट? वी शेल आउट सम मनी फॉर सम नीडी, कुछ आप सोशल वर्क करते होगे, कुछ पैसे देते होगे, तो आई थिंक 10% इज अ परसेंटेज दैट आश्मीन मैम सेड कि जो आपका एंड का यू नो आपका सारा खर्चा वर्चा करके जो बचता है उसमें से 10% यू शुड बी गिविंग टू समवन, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना, तन मन धन से आपको सेवा करना है, ठीक है? तो सबसे इजी एज सच एज पर मी इज धन, व्हाट इज रॉन्ग विद मी, ठीक है? धन इज लाइक श्रम, ओके, नॉट समथिंग एल्स, ठीक है? सो सबसे इजी इज धन, कि आपको कुछ करना नहीं, आपने पैसे दे दिए और आपका हो गया। तो whenever you are giving that money, you have to feel very very grateful कि that you got the opportunity to help someone, ठीक है? You were blessed with this money to help someone. तो one is this. Second, आप या तो उसको आप मंथली एक अमाउंट निकाल सकते हो। आश्मीन मैम कहती है कि अगर आप रोज 3 जन को पैसे देते हो तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि और वो कैसे करना है, शी हैज टोल्ड अस दैट आपको वो 3 नोट, इट कैन बी अ 5 रुपी नोट, इट कुड बी अ 10 रुपी नोट, छाया जी वाज टेलिंग अस दैट इट कैन बी अ कॉइन आल्सो, बट आश्मीन मैम ने बोला था नोट करना है। तो व्हेन यू आर डूइंग दैट, आपको वो 3 नोट को हाथ में रख के, या आपने मे बी अभी लॉकडाउन है तो आपने उसको इकट्ठा मे बी अ कपल ऑफ नोट्स ऑफ 5, 10, 20 व्हाटएवर यू वांट,
उसको आपने इकट्ठा करके रख लिया। यू हैव टू सी दैट यू आर फीलिंग सो अबंडेंट कि आपके पास इतने सारे पैसे हैं। जितने बार आप वो बॉक्स खोल के वो नोट्स देखिए, द स्मॉल नोट्स, आप जितना उसको खोल के अबंडेंट फील करोगे कि लाइक वाओ यू हैव गॉट सो मच मनी, ठीक है, एंड आप उसको ब्लेस करो एंड देन यू गिव इट टू द नीडी, ठीक है। इट कैन बी अ 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, और उसी में से देना है आपको, ठीक है। जितना ज्यादा आप उसको देख के अबंडेंट फील करोगे, उतना ज्यादा आप उसमें ब्लेसिंग दे रहे हो, उतना ज्यादा आपको उसका वो घूम के पैसा आपके पास वापस आएगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ शी टेल्स, आप जो मंथली करते हो वो अलग है, ये भी अगर आप अलग से करो, इट्स लाइक ईच टाइम यू आर गिविंग टू समवन, ठीक है। आपको वो फीलिंग फिर से आ रही है कि जैसे हमने बोला ना, हर बिल पे अगर आप लिख रहे हो तो यू आर फीलिंग दैट ग्रेटिट्यूड दैट मेनी मोर टाइम्स। तो जब आप जितने बार वो एक जन को वो पैसे दे रहे हो, उतना ज्यादा आपको वो ब्लेसिंग्स, और बार बार आप वो ब्लेसिंग वाले फीलिंग में आ रहे हो, ग्रैटिट्यूड वाले फीलिंग में आ रहे हो, तो उतना ज्यादा वो पैसे घूम के वापस आते हैं। सो दिस वाज वन टिप, दिस इज फॉर द न्यू पीपल, जो लोग पहले से जानते थे। इफ यू हैव स्टॉप्ड, जैसे मेरा भी बीच में छूट जाता है, तो नाउ व्हेन आई एम टेलिंग यू, मेरे को भी याद है मैंने थोड़े दिन से नहीं किए बिकॉज ऑफ यू नो बीइंग एट होम, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, तो इससे आपकी लाइफ में और जल्दी पैसे घूम के आएंगे, बिकॉज मनी का साइकिल सबसे जल्दी दिखता है, ओके। एंड आप ये करोगे, आपका कैसे कैसे लाइक मेरे संग तो इसमें बहुत हुआ था, मेरे कोई जो पैसे आने बाकी थे, थोड़े से डिले हो रहे थे, तो वो आ गए, ठीक है। तो ये करने से बहुत फास्ट आपकी लाइफ में इसका रिटर्न आता है। मैम तो जैसे हमारा लाइक जैसे मंथली जो सैलरी है, उसमें हमें 10% देना है, या फिर जो सैलरी आता है उसमें से सारे हमारे एक्सपेंसेस को यूज करने के बाद में जो अमाउंट बचता है उसमें से 10% देना है? वो आपके ऊपर है, ठीक है। इफ यू फील कि सैलरी से 10% इज गुड इनफ, आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे तो डू दैट। मेरे को लग रहा था कि मैंने स्टार्टिंग ऐसे की थी, बिकॉज शुरू में मेरी इनकम कम थी, तो आई वुड डू दैट, बट जैसे जैसे वो बढ़ गई थोड़ी थोड़ी, यू नो ओवर द इयर्स, थोड़ा थोड़ा सा बढ़ने लगा, देन आई थॉट अरे इतना करना है, तो मेरा थॉट चेंज हो गया। सो देन आई थॉट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई थॉट दैट कि अपना सारा एक्सपेंसेस हटा के, लाइक सैलरी जो लोगों को देते हैं, रेंट देना है, यू नो पार्किंग, फ्यूल, जो भी कुछ कुछ है, उसके बाद से मैंने 10% का स्टार्ट किया, ठीक है। बट जितना आप मन से दोगे, लाइक बुक इज टेलिंग दैट ना, कि जिसमें फीलिंग ज्यादा है, ठीक है, उससे करने से बेटर है। तो इट इज अप टू यू, एवरीवन सेज 10%, बट आई फील आपका जो भी खर्चा वर्चा निकाल के आफ्टर दैट यू डू दैट 10%। बट इफ यू फील कि नहीं सैलरी का 10% इज ऑल्सो गुड, यू विल फील वेरी नाइस एंड हैप्पी डूइंग इट, डू दैट। ओके, थैंक यू सो मच। प्रिया जी, डेली के 3 नोट्स निकालने हैं हम लोग को, हाँ, तो हम लोग जैसे इकट्ठा कर सकते हैं ना 3 नोट्स डेली के, इकट्ठा कर सकते हैं मतलब लाइक आप जब जैसे फिर मंथली उसको कहीं जाके दे सकते हैं ना, डेली तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, डेली तो पॉसिबल नहीं है, बट लेकिन अभी सपोज आप निकले कहीं पे, ठीक है, आप कहीं बाहर गए, तो आपने उसी में से वो 3 नोट्स रख लिए, ठीक है। कोई दिख गया तो आपने दे दिए, नहीं दिखा तो वो वापस लाके आपने उसी बॉक्स में रख दिए, ओके। दैट वे यू कैन। जैसे और सबको मतलब वो उस नोट का हम लोग कुछ खरीद के भी किसी को दे सकते हैं ना, जैसे हम लोग यहाँ पे सेवा करने के लिए जाते हैं। हाँ, देखिए मैम का कहना ये है कि अगर आप पैसे दोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आपने अन्न दिया या आपने खाना दिया तो आपको वो मिलेगा। एंड बुक ऑल्सो सेज दिस, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू रिसीव। तो अगर आपको लगता है कि खाना देंगे आप, तो आपको खाना आपके घर में खाने का माने पूरा भरपूर रहेगा हमेशा, तो वो रहेगा। इफ यू वांट टू गिव क्लोथ्स, तो आपके देखिएगा वार्डरोब्स भरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो आप जिस चीज का साइकिल चलाएंगे वो ही घूम के पास आपके वापस आएगा, ठीक है। दैट वे। Okay, thank you. So I think let's call it a night and see each other tomorrow and start collecting the bills, keep writing, ठीक है। and हमारा ड्रीम का चैप्टर बहुत जल्दी आने वाला है, तो जिसने भी ड्रीम अभी लिखनी बाकी है, प्लीज राइट इट एंड बी रेडी, क्योंकि ये जो भी हम लोग ये कलेक्शन कर रहे हैं, जो ये रूट्स नीचे जा रही हैं और जिसको हम नरिश कर रहे हैं, वो हम लोग किस लिए कर रहे हैं? हाँ, उस फल के लिए करें। अगर आपने वो फल का नाम ही नहीं सोचा है तो ये ऊपर जाके क्या करेगा? इट्स लाइक यू नो, देन आई विल से नहीं, ग्रेटिट्यूड से कुछ मैजिक नहीं होता है। हमको तो पता ही नहीं हमको क्या चाहिए, तो कैसे मिलेगा वो हमको? ओके, सो थैंक यू एवरीवन। अच्छा प्रिया जी, हम लोग की शॉप में जो स्टॉक आता है, हाँ, तो उसका हम लोग पेमेंट किए रहते हैं, तो उस बिल पे भी हम लोग थैंक यू पेड लिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लिखना है, आप जो भी खरीद रहे हो उस पे लिखना है, ठीक है। चाहे आपका सामान के लिए बने, एनीथिंग, बिल मतलब यू हैव टू राइट ऑन इट, ठीक है। नॉट जस्ट कि घर के खर्चे, आपके घर से लक्ष्मी जा रही है तो यू हैव टू राइट थैंक यू पेड, ठीक है।
मैम ड्रीम्स जो आप बता रहे हो तो उसमें लाइक पूरा सेंटेंस यानी लिख के यानी वो लिस्ट हमको बना के रखना है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा मुझे होम चाहिए, ठीक है, तो मैंने सिर्फ वहाँ पे माय ड्रीम होम करके लिख दिया तो भी चलता है, या सिर्फ होम लिख दिया, माय होम करके लिख दिया तो भी चलता है? देखिए ड्रीम अभी हम लोग लैंग्वेज उसकी उसी दिन पढ़ेंगे। होम लिखने से माने होम नहीं होएगा ना। लाइक मेरे को सपोज हम आप रेस्टोरेंट गए, ठीक है, आपने बोला मुझे कुछ खाने को लेके दो, ठीक है, आपने बोला मुझे पिज्जा चाहिए, चलो सपोज आपको पिज्जा चाहिए, आपको तो उसको स्पेसिफाई करना होगा ना, आपको नॉन वेज पिज्जा चाहिए कि वेज पिज्जा चाहिए कि आपको चिली पिज्जा चाहिए, तो आपको लिखना होगा कि आपको किस टाइप का होम चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको सेंटेंस लिखना है। इट्स लाइक इट शुड बी एज स्पेसिफिक एज यू वांट, ओके। तो आपको उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है कि अच्छा पूरा सेंटेंस बनाना है उसको, ओके। वैसे दैट यू आर लिविंग इन योर बंगलो और यू आर लिविंग इन योर पेंट हाउस और यू आर लिविंग इन योर फ्लैट, आपको जो चाहिए वो लिखना है, खाली होम बोलने से नहीं होएगा, ठीक है। कैसा घर चाहिए आपको, ठीक है, वो लिखना होगा। ओके, थैंक यू सो मच। या थैंक यू थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू एंड सी यू टुमारो एवरीवन। अपना लाइक सी इसीलिए कि आप ये लिख लो एकदम, ठीक है। या ओके, सो थैंक यू। Thank you, Priya ji, once again. Yeah, Thank you everyone and good night. Okay, we will good meet. night Yes, thank you so much or we can catch each other. And you know, I am like a very, if you ask my family, I'm a very hyper and a strict kind of a person and a very disciplined, not so disciplined also, but a very serious kind of a person. So I don't know आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि everyone is देख के तो नहीं लगता है। हाँ देख के बिल्कुल नहीं लगता। नहीं, but I am a little serious kind of a person, ठीक है। Generally I am like keep to myself because I feel this book is so amazing. इसको जितना शेयर करेंगे, जितना आगे बढ़ाएंगे, सबके लाइफ में वो चेंजेस आते हैं ना। तो if you ask my family, दिल से बहुत सीरियस है, बहुत स्ट्रिक्ट काइंड की पर्सन है ये, ठीक है। but for us you are smiling sweet charming person. Okay, thank you. Thank you so much for your lovely and I don't think being serious is a bad thing. Okay, it's a very good thing. Thank you Tarni. Yeah. Okay, thank you and good night. Thank you, Priya. Thank you, Shifra. Thank you. Bye. Thank you.